Okay, hi, good morning everyone. चलिए please put on your videos. रेखा, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। कोई खारघर से ज्वाइन कर रहा है? नो सर। खारघर से कोई नहीं है, क्लासरूम से कोई नहीं कर रहा है इस क्लास को। अगर कोई क्लासरूम से करे तो आप खारघर क्लासरूम ऑन करना, so that I know कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा सर, मनीष ने किया था बट अभी उसने बंद कर दिया। Okay, okay. So guys, I'm waiting for you to put on your video so that we can start. Now, this is possibly our first interaction for the IPM course. Usually you guys, you do your English sessions on Sundays, which you're not doing now. And for the complete month of October, you will not have Sunday as your English sessions. Uska बहुत छोटा सा एक कारण है. And the reason is that, you know, your English faculty, she has traveled to Dubai. She is not here this October month, but we would not want to miss on any of your classes because time is something that we are fighting against. So you will have either maths or logical reasoning or DI, which is anyway an agenda that we need to cover. So we'll anyway do that. So you will not have, you know, blackout days where you will not have any classes. ऐसा नहीं करेंगे. So we will do some maths, we'll do some logical reasoning, DI. और फिर आगे जाके ऐसा हो सकता है that English हम double लगाएं, depending upon how much portion we cover, looking into the IPM 2023 exam. So, I see Prita Kothari, you being there, but your video is not on. So I'll request you to put on your video. And Rekha, you can watch these guys. अगर 5 मिनट में video on नहीं होता है, तो आप इनको waiting room में डाल दीजिएगा. Yes sir. I may not be able to look कि किसका video है नहीं है. Aditya here, hi, please put on your video. So what is that we are doing today? Now please keep a notebook which is maths book 2 ready with you because I'll not be sharing questions on screen. So it is important that you have that book handy and ready with you. In case you don't have that book, let me know as we start if you don't have that book. Either a hard copy or a soft form, कुछ भी हो वो एक साथ में रखना है आपको. It was there in the message. We'll do one of the chapters, chapter today from the given lot. And I'll give you a background into that. You don't have to do any switching, nothing. आपको सिर्फ screen देखना है. And my working space, the problems that we are going to do, all that will come on your screen. So first I'll make myself as the spotlight. And let me see who all are there in my class today. मैं एक बार नाम ले लेता हूँ. So now I see Sneha Chaudhary, Manya, Nishi Garg, Aditya, Prita Kothari, Satvika Bartam, Karmanya, and of course Rekha, but Rekha is not there as student. चलो भाई, तो चालू करते हैं. तो 3 plus 3, 6 and 1, 7. Okay guys, so we start now. The topic that we have at hand today and the topic that I'm going to touch upon today is an interesting topic. We are picking it from book 2 of your Rekha, आप please ये admissions और ये सब संभालना. I'm not looking into that. मुझे बार-बार वो आ रहा है notification. So where was I? Yes. So we are doing a topic today which is called data sufficiency. This happens to be chapter number 22 on your book, but you don't have to refer this book till the time I tell you. I think at least for first 45 minutes, you don't have to refer anything from the book. You just have to concentrate on what I am saying and what is that I'm writing. You may want to make a lot of notes because there's not a lot of theory that is there on your book. So it is important that you know, write down whatever I do on my working space. एक छोटा सा introduction लेते हैं data sufficiency का. How important is that topic? So my assumption here is, and it's a safe assumption, that you guys are going to write some or the other management entrance exams after 12th. Right? कोई IPM लिखेगा, कोई Sufficiency लिखेगा, कोई नरसिम्हा लिखना है किसी को maybe CUET लिखना है for that matter. Yeah, you may be writing Christ and so many other management competitive exams आप लिखने वाले हो post 12th admissions के लिए. So from that perspective, if you see guys, and IPM being the mother of all exams, from that perspective, if you see, Tanvi Maheshwari, please put on your video. So if you see it from that perspective, this is fairly interesting topic.
new, you may not have done something like this before. नंबर सिस्टम्स पहले किया है, परसेंटेजेस पहले किया है, रेशियो प्रोपोर्शंस पहले किया है, और बहुत अच्छे से नहीं भी किया है तो नाम सुना है 6th 7th 8th 9th 10th में. But this is something that you may not have dealt in detail, or rather as an introductory topic ever in your life, and possibly this will be the first encounter you will have. So let us understand कि इतना difficult नहीं है. By the end of session you will agree with me. So the name is new, which is data sufficiency. Weightage पे अगर मैं आऊँ, so if you are very unlucky on the exam day, you will have 0 problems on your test paper. अगर आपका लक नहीं चल रहा है तो एक भी सवाल नहीं आएगा उस दिन. इसका मतलब ये है कि अगर ये सवाल आते हैं, it's in your favor, you will be the lucky one, क्योंकि आपने भाई ट्रेनिंग लिया है. ट्रेनिंग लेके अगर कोई काम को करने जा रहे हो तो वो आना चाहिए ना, तभी you will score over students जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है. So IPM exam में you may face 2 to 3 problems or 0. Ideally एक सवाल नहीं आएगा. That's the beauty of this. क्योंकि कुछ डायरेक्शंस होंगे, बड़े सारे डायरेक्शंस होंगे, 5-6 लाइन के बड़े से लंबे पैराग्राफ्स में डायरेक्शंस होंगे, और उनके ऊपर बेस्ड एक ही सेट के ऊपर बेस्ड 2 या 3 सवाल होंगे. मतलब अगर आपने डायरेक्शंस को ठीक से समझा, you will be able to crack 2-3 problems in one go, or you may spoil or mess up with 2-3 problems in one go. If I talk about symbiosis नरसिंह मुंजी, तो IPM में 2-3 सवाल आने चाहिए, 0 भी देखा गया है. If I talk about symbiosis नरसिंह मुंजी Christ, रेगुलर फीचर, ये रेगुलरली आपको आपके दूसरे नॉन IIMs वाले जितने भी हैं उनमें आपको ये दिखेगा. And you may have 4 to 5 problems coming on your paper from data sufficiency. Okay, so are we all set? Can we start on that note now? Okay, so like I said, you don't have to worry about anything. You just have to concentrate on my working space, which I guess is visible now. Is it, Ms. Chaudhary? हाँ दिख रहा है, ठीक है. So let's start this, and हम लोग अभी right spirit में हैं. So the topic that I'm going to do is data sufficiency. Kindly do not refer your book right now. I'll tell you जब उसकी जरूरत होगी तब देखेंगे. अभी तो आप लोग सिर्फ मेरे वर्किंग स्पेस को देखो और ये देखो कि सुनाई दे रहा है ना. Sufficiency. So we are talking about data sufficiency. Basically we are talking about, is the given information, data, information given to you, is it sufficient enough for you to take a decision without ambiguity? क्या आप कोई एक डिसीजन ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा बेटर पेन यूज करता हूँ, क्या आप कोई डिसीजन ले सकते हैं विदाउट एम्बिग्विटी, नो एम्बिग्विटी, कोई एम्बिग्विटी या इसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. With 100% clarity, can I take a decision given the data and information? So whatever, जब आप अगर मैनेजमेंट कोर्स में जा रहे हो तो this is what you are going to do, deal day in day out. आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है मार्केटिंग से, HR से, फाइनेंस से, कॉम्पिटिटर्स से, तो मार्केट से, कस्टमर से, वो डेटा के ऊपर देखकर क्या आप कोई एक डिसीजन ले सकते हैं जिसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो 100% क्लैरिटी और सर्टेनिटी से आप कोई डिसीजन ले सकते हैं. That is the skill that they are going to check. Of course, they will check it using mathematical skills. They will check it possibly at times using verbal या जिसको हम English language skills बोलते हैं, articulative skills बोलते हैं, उसको देके वो ये चेक करना चाहेंगे. So sufficiency of data is what we are going to study right now. Is given data sufficient? तो इसके लिए what we will do is we will go through some basic slides. मैंने कुछ slides बनाई हैं आप लोगों के लिए, हम पहले उसको देखते हैं. अच्छा, in this class feel free to unmute yourself and interrupt me and ask me whenever wherever you think ये समझ में नहीं आ रहा है, हम फास्ट जा रहे हैं, हम बहुत स्लो जा रहे हैं, you have a different point of view. क्योंकि अगर डेटा सफिशिएंसी में हम डिबेट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और आप सब कुछ एक्सेप्ट करते जा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, when we do problems, let me tell you there's a serious problem. Because unless and until we debate it out कि ये आंसर क्यों आया और वो आप वाला आंसर क्यों नहीं है, अगर वो आंसर नहीं है तो, and if you have not understood this, then there is a big problem. तो डेटा सफिशिएंसी में एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए you will see many books and literature telling you that do it at last. मुझे लगता है ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अगर 3-4 सवाल आ जाते हैं एक साथ करो इसको.
द आइडिया इज वो एक बार आप उसको क्रैक करोगे 3-4 सवाल राइट होंगे. सो डेटा सफिशिएंसी पे आते हैं. सो व्हाट आर दी स्किल्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या लगेगा अगर हमको आगे इस पे बढ़ना है. नंबर थियरी, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, वो वाला कॉन्सेप्ट, वो वाले मैथमेटिकल स्किल्स लगेंगे. यू हैव ऑलरेडी डन दैट, राइट. आगे बढ़ते हैं. तन्वी महेश्वरी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर. बोलो. हाँ ठीक है. ज्योमेट्री हेवीली यूज होगा, तो यू मस्ट नो योर सर्कल्स एंड यू मस्ट नो योर रेक्टेंगल्स, और वो सब आना चाहिए. कंस्ट्रक्शन वो सब आना चाहिए. 2D, 3D, cube, cuboid, rectangle, prism, all that will be required. Lot of reasoning, because there could be some cases जो आपने शायद सोचे भी नहीं और वो भी कुछ possible cases होते हैं. तो we'll have to do some good amount of reasoning. Basic mathematical formula, averages के, percentages के, ratio proportion के, ये वाले कुछ basic आपको sequences and series के AP, not GP maybe, but arithmetic progression वाले, तो कुछ basic formulas आपको पता होने चाहिए. Like I said, generally 0 to 3 problems in exams, especially IIM वाला exam, but otherwise it's a regular feature in symbiosis, Narsimhanji, Christ, उन सब में regular feature होगा. I think this can be solved fast. तो अगर आप आपका book पढ़ोगे तो उसके top पे लिखा हुआ है difficult होते हैं ये. I don't agree. I don't agree with my book even. So I say they can be solved fast, provided you have done enough practice, you have developed an approach. So I think ये आपका USP बनेगा, because otherwise जनता would be leaving it, you should be attempting it and should be scoring. अब वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. तो चलो इस पे आगे बढ़ते हैं. कैसा दिखता है अगर ये पेपर पे आएगा, तो ये क्वेश्चन दिखेगा कैसे? ये क्वेश्चन है ना, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप पेपर पे आएगा. अभी तो ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक नहीं दिखेगा. सबसे पहले आपको दिखेगा डायरेक्शंस फॉर मार्किंग ऑप्शंस. लंबे चौड़े डायरेक्शंस होंगे. मार्क योर आंसर एज ऑप्शन, ऐसा कुछ होगा. तो देयर विल बी डायरेक्शन का सेगमेंट व्हिच विल से फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 4, फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फॉर क्वेश्चन नंबर 89 to 101. फॉलो दीज डायरेक्शंस एंड देयर विल बी स्टेटमेंट्स. 4, 5, 6 डायरेक्शंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे स्ट्रक्चर किया गया. उसके बाद you will see the real question, question number 25, and the question will follow. Question could be half a line to even a lengthy question हो सकता है, 7-8 लाइन का क्वेश्चन हो सकता है. तो पहले कुछ डायरेक्शंस होंगे कि ऑप्शंस कैसे चूज करना है आपको आपकी OMR शीट पे या फिर स्क्रीन पे, कौन से बबल को टिक करने के लिए क्या डायरेक्शंस हैं. Then followed by the question. After the question, now this is something unique to DS. DS is data sufficiency. You will have statements, ideally couple of statements. तो जो मैं आपको बोल रहा था ना डेटा या इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे दिया होगा. तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे. ये स्टेटमेंट्स को 100% ट्रू मानना है, इवन इफ इट इज एट अ वेरिएंस फ्रॉम द कॉमन नॉलेज. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. जो स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे उनको हमेशा ट्रू मानना है आपको, irrespective of शायद वो रियल वर्ल्ड में वैसे नहीं होते. Okay, so statements would be always considered to be true as an additional information which is truth. उसमें there is nothing to deceive you. So you should treat them as to be always true, always 100% universal truth के सामने. तो मान लो अगर स्टेटमेंट है sun rises from west, खड़े मत हो जाना एग्जामिनेशन हॉल में कि प्रिंटिंग एरर है. ठीक है, अगर स्टेटमेंट में ये दिया है, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेटमेंट ए से सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, कंसिडर इट टू बी ट्रू. इट मे बी एट अ वेरिएंस फ्रॉम यूनिवर्सल नोन फैक्ट, इट मे नॉट मैच योर थिंकिंग एंड थियरी एंड फिलॉसफी. उसको आपको सही मानना है. आर यू गेटिंग मी? तो ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के. कुछ डायरेक्शंस होंगे, फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट्स आएंगे. स्टेटमेंट्स एक्चुअली वो डेटा है जिसको आपको चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट, ये डेटा इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिलता है तो क्या ये इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए ट्रू है. मैं बताऊंगा किस तरह का डिसीजन. आगे बढ़ते हैं. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. डायरेक्शंस कुछ इस तरह से आएंगे. आई डोंट नो वो 1 वाला कहाँ उड़ गया. हाँ आ गया. सो दिस इज अ 5 ऑप्शन DS. इसको बोला जाता है 5 ऑप्शन DS. इसका मतलब कोई 4 ऑप्शन भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, वो हम बाद में देखते हैं. पहले मैं एक जनरल बात करता हूँ. 5 ऑप्शन DS. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस. आई विल गो स्लो.
Mark your answer as option 1 if statement A alone is sufficient for you to answer the question. मान लो 2 स्टेटमेंट्स हैं, अगर स्टेटमेंट ए अलोन मेरे लिए सफिशिएंट है तो मैं ऑप्शन 1 को मार्क करूंगा एज माय आंसर. ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट ये समझना जरूरी है, नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू प्ले द गेम. सो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ द गेम. मार्क योर आंसर एज ऑप्शन 2. मार्क योर आंसर एज ऑप्शन 2 मतलब वो आपकी OMR शीट में या स्क्रीन पे गोला करो ऑप्शन 2 को इफ स्टेटमेंट बी अलोन is sufficient. A की जरूरत नहीं है. Be alone, the word is be alone is sufficient to answer the question given above. Mark your answer as option 3 if A and B together are sufficient to answer the question. A और B एक साथ आपको चाहिए. Let me make myself as spotlight. If A and B together, A alone sufficient नहीं है, B alone sufficient नहीं है, मगर दोनों को साथ में लेते हैं तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनती है ऊपर वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. यू विल मार्क इट एज ऑप्शन 3. देन ऑप्शन 3 करेक्ट है. इफ नीदर स्टेटमेंट ए नॉर स्टेटमेंट बी, न ए अलग न बी अलग, न दोनों को मिला के मैं उस क्वेश्चन को 100% क्लैरिटी से विदाउट एम्बिग्यूटी एंड कंफ्यूजन से आंसर कर सकता हूं. मैं नहीं कर सकता उसको आंसर. ए अलोन भी नहीं, बी अलोन भी नहीं और ए एंड बी टुगेदर भी नहीं. I will mark it as option 4. Are you getting me, guys? ठीक है. Mark your answer as option 5 if either statement A or statement B is sufficient. Mark your answer as option 5 if either statement A or B is sufficient to answer the question given. So Aditya here. अब आप आ गए हॉट सीट पे. समझाओ ऑप्शन 5 क्या है. व्हाट इज एक्चुअली ऑप्शन 5? Sir, they have divided the question into 2 statements, statement A, statement B, and you have to verify which of the statement is sufficient enough in order to fulfill the need. I got that. That is not my question. My question is option 5 को कब मार्क करेंगे? It says either statement A or B is sufficient to answer the question. What does this mean? How is it different from the other 4? So in other 4, either both of them are needed or none of them are needed or only one is needed and the other one not needed. But in this, both of them fulfill the same condition. Very good. So basically what he is saying is, if you understand, मैं वापस जाता हूँ मेरे screen पे. What he is saying is, A alone एक आंसर दे रहा है आपको और B alone आपको एक आंसर दे रहा है. जरूरी नहीं है दोनों का आंसर सेम हो, बट दोनों का आंसर अपने आप में यूनिक है, सफिशिएंट है, विदाउट कंफ्यूजन. दोनों आपको एक एक आंसर दे रहे हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई केसेस नहीं है, कोई मे भी नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. दोनों इंडिविजुअली केपेबल हैं आंसर देने के लिए. तो आप ऑप्शन 5 मार्क करेंगे. मानिए समझ में नहीं आया ना? आ गया सर. आ गया. चलो, सो लेट्स सी. अब अगर ऐसा आता है, आई विल वांट यू गाइस टू स्पेंड 30 सेकेंड्स विदाउट गेटिंग इनटू क्वेश्चन. एक काम फटाफट अपनी कॉपी पे करना. क्या? जैसे ही आपने 1 पढ़ा, इफ स्टेटमेंट ए अलोन इज सफिशिएंट, ये करना अपनी कॉपी पे. इसका मतलब ये हुआ ए अलोन सफिशिएंट है मगर बी अलोन सफिशिएंट नहीं है. एक नोटिफिकेशन बना लेना 1 या ऑप्शन 1 को मैं मार्क करूंगा या करूंगी जब ए अलोन सफिशिएंट है. ए टिक, बी क्रॉस. बी अलोन नहीं होना चाहिए. ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बी को सोचना ही नहीं है अब अपने को. I will mark option 2 when A alone is not sufficient, B alone is sufficient. A cross B tick. अगर ऐसा हो रहा है, A अकेला आंसर नहीं दे पा रहा है, B आंसर दे पा रहा है. ये आंसर देना क्या होता है मैं भी आगे आता हूं. ऑप्शन 3 को कब मार्क करूंगा? A alone is not sufficient, B alone is not sufficient, but if they come together they are able to give me some unique answer. Unique is the keyword. They are able to give me some answer without ambiguity. 4th कैसे लिखूंगा? A alone is not sufficient, B alone is not sufficient, A and B together are not sufficient. बोलिए, ये आ रहा है समझ में जो मैं कर रहा हूं? सात्विका? Yeah. So what do you say? What should be how should the 5th be written as, Satvika?
It will be 5. टिक और क्रॉस A. बताओ। यस, हाँ, अनम्यूट करो। It will be A with a tick mark, and we'll write B with a tick mark as well. Very good. A alone is sufficient to give me an answer. B alone is sufficient to give me an answer. मैं फिर से बोलता हूँ, do not confuse कि दोनों सेम ही आंसर देंगे। A से आंसर 5 आ सकता है, B से आंसर 7 आ सकता है, मगर A को यूज करेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा आंसर, B को यूज करेंगे तो सिर्फ 7 ही आएगा आंसर। कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, 7 and 8 नहीं हो सकता। ओके, दोनों यूज कर सकते हैं, हम अलग अलग यूज करेंगे तो हमको एक यूनिक आंसर मिल जाएगा। एंड इन दैट केस गाइस, आप ऑप्शन 5th टिक करेंगे, जिसको लिखने का तरीका या समझने का तरीका ये होगा। क्या ये पेपर में ऐसा दिया हुआ है? नहीं। क्या थ्योरी बुक ऐसा बोलती है करने को? नहीं, थ्योरी बुक डजंट से। दिस इज व्हाट आई से। इफ यू डू इट लाइक दिस, आई कैन टेल यू कि ऐसा करने से आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बोलिए, am I making sense here? So if you see this, ये होता है, ये अभी मैंने आपको ना पहला वाला ब्लू ब्लॉक समझाया है। What I've just done is I've made you, अच्छा मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, रेड। I've made you understand this part. तो इसीलिए मैं बोला था पहले 45 मिनट्स नो बुक रिक्वायर्ड। ये समझ में आ गया तो शायद हम आज क्लास आधा घंटा पहले ही खत्म कर देंगे। तो बोलो, ये आ गया समझ में? डायरेक्शंस इस तरह से आएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये IIMs के लोग हैं, यू नो, सपोज टू बी दी स्मार्टेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट, ऐसी मजाक कर रहा हूं मैं, बट यू नो दे मे से कि नहीं, इस साल ना 2023 में पाही ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। आई डोंट वांट टू गिव अ 5 ऑप्शन DS, वी विल डू अ 4 ऑप्शन। हम सिर्फ 4 ऑप्शन पे ही जाएंगे। तो उस समय वहां पर 4 ऑप्शन उस हिसाब से बनाना, ये लेके मत बैठ जाना कि यही होगा क्योंकि यूटी में ऐसा बोला है। समझ गए? डायरेक्शंस के हिसाब से टिक और क्रॉस बना लेना। इट विल हेल्प यू बाय अवॉइडिंग टू रेफर दीज लॉन्ग स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। एक मिनट, हम लेट मी क्लियर ऑल ऑफ दिस एंड आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट। So the systematic approach of solving DS problem is you should ask 3 basic questions always. हमेशा 3 सवाल पूछिए, and I can tell you, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे easy है, you will not get it wrong. आपका हमेशा आंसर राइट ही आएगा। ये 3 सवाल क्या है गाइस? ये देखो अभी, और अब मैं जो बना रहा हूँ, I want you to put it on your paper as well. So I call it flow charting method, replace spotlight. I hope मेरा working space आप लोगों को दिख रहा है। So I call it flow charting method. ये जो flow charting method है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ये 5 ऑप्शन DS वाला, अभी जो 5 ऑप्शन आपने देखा ना, आपको स्टेटमेंट्स तो याद हो गए होंगे। पहला था A alone sufficient, दूसरा था B alone sufficient, तीसरा क्या था भाई, A alone नहीं, B alone नहीं, but together they can। चौथा क्या था, A alone नहीं, B alone नहीं, A and B together भी नहीं। और फिफ्थ क्या था, A alone can give you an answer, B alone can give you an answer। ठीक है, मैं बोलता हूं इसको सबसे अच्छा है फ्लो चार्टिंग बनाओ। एक्चुअली दिमाग में ये चलना चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू द अप्रोच, आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस व्हेन यू आर सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस। आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन, 3 सवाल पूछो, एंड इन द ऑर्डर्ड वे। ये जो ऑर्डर्ड वे है उसी में पूछना है जैसे मैं पूछ रहा हूं। सबसे पहला सवाल किसी भी क्वेश्चन पे पूछो इज स्टेटमेंट A alone sufficient to get an answer? सबसे पहले आप पूछेंगे is statement A alone sufficient to get an answer? Good part is हमेशा आंसर आएगा yes या no में। Yes, A alone is sufficient, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है no, A alone is not sufficient, है ना गाइस? अच्छा, मैं यहाँ ना क्विकली लिख देता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ स्पेस है नहीं, तो लेट मी बी लिटिल फ्रूगल। A अलोन, B नहीं। सेकंड वाला था A नहीं, B अलोन। थर्ड वाला था A अलोन नहीं, B अलोन नहीं, मगर A एंड B मिलके आंसर दे देते हैं। चौथा वाला था A अलोन नहीं, B अलोन नहीं, और A एंड B भी नहीं, ये चौथा वाला था। पांचवा वाला था A अलोन भी आंसर देता है, B अलोन भी आंसर देता है।
ठीक है, so this is like 1 2 3 4 5. I'm very sorry for this mess out here, but lesson is clear. तो if A alone is sufficient, और मान लो आपने सवाल पूछा क्या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है, मान लो जवाब आता है yes it is sufficient. पॉसिबल आंसर्स बताओ भाई, guys, anybody unmute. sorry, 1 or 5th. 1,5. अगर A alone sufficient है तो हमारा आंसर या तो 1 होगा या 5 होगा at first level of question. If A alone is not sufficient, possible answers are या तो option 2 या option 3 या option 4. प्रीता कोठारी, आदेश, put on your videos. Am I making sense? ये सब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. निशी गर्ग, ये क्लियर हो रहा But है? there's some problem with my network. ओके, निशी बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आदेश, आपने लेट ज्वाइन किया था, बट आई होप यू आर विथ मी ऑन दिस. ठीक है बेटे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो. अगर हम मान लो ये ट्री है मेरा और इस ब्रांच पे आ गए, वी आर ऑन दिस ब्रांच, आस्क योरसेल्फ इज बी अलोन सफिशिएंट. तो इसका मतलब जब ए को देखो तो बी को मत देखना, और जब बी को देखो तो ए को मत देखना. इज बी अलोन sufficient to answer the given question? Again, दो possibilities हैं, yes या no. मान लो yes आता है, बोलो आंसर क्या है, पॉसिबल आंसर 2, बोलो. 2, 5. अरे 1 या 5 पॉसिबल थे. ए अलोन सफिशिएंट है तो 1 होगा या 5 होगा. आपने नेक्स्ट सवाल पूछा क्या बी अलोन सफिशिएंट है, आंसर आता है हाँ बी अलोन भी सफिशिएंट है. तो ए अलोन भी सफिशिएंट है to answer the question. B alone be sufficient है to get a unique answer. No doubts, no ambiguity. Answer would be option 5. Let's say answer. जब हम A को देखेंगे तब B को नहीं देखेंगे. जब B को रुको रुको. हाँ, 1 मिनट, मैं ये सब स्टॉप करता हूँ और मुझे आप लोगों को देखने दो. हाँ. So there was somebody who saying A को नहीं देखेंगे, B को नहीं देखेंगे. Yeah. हाँ, go ahead. So sir, you said ना कि जब हम B पे concentrate कर रहे हैं, we won't see कि A sufficient है कि नहीं, तो फिर why would we consider as like we would not consider second as an option? Good point that you are making. So I'll go back. अच्छा, एक और क्वेश्चन था. Somebody was asking me why not what. पूछ लो, अभी पूछो मुझसे. Why not 2? ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही रीजनिंग से आ जाएगा. या कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है? ये दोनों क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है, आपने बोला जब ए को देखो तो बी को मत देखो, जब बी को देखो तो ए को मत देखो, तो आपने 5 क्यों मार्क कर दिया? और दूसरा है कि आपने 2 क्यों नहीं मार्क किया, आप तो बी अलोन पूछ रहे हो. सो आई गो बैक टू माय ड्राइंग बोर्ड एंड आई विल ट्राई एंड आंसर बोथ द क्वेश्चंस इन वन वे. देखो भैया, this is what I am saying. When you are asking a question, when you are asking question about statement A, only look at A, forget B. Now after that, ये tree है, ये इसका root है. You have traveled to some branch. You have traveled either to a yes branch or a no branch. अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो आंसर आया yes. अभी भी हमारे पास देखो एम्बिग्यूटी है, पता नहीं वन आंसर है कि बी है. अब ये एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए क्या करोगे, एक और सवाल पूछोगे. मगर जब ये सवाल पूछोगे तब ए का ध्यान में कोई डेटा नहीं लेना है, हमको सिर्फ बी का डेटा ही लेना है. तो आप पूछोगे क्या बी अकेला सफिशिएंट है, आप ऑलरेडी ए सफिशिएंट पे आ गए हो. तो मान लो आंसर आता है, अच्छा 2 क्यों नहीं होगा, 2 तो ऑप्शन में नहीं है. अगर ए सफिशिएंट हो चुका है तो अब पॉसिबल क्या है, यहाँ पे देखो ए टिक आ चुका है, तो ए टिक में ऑप्शन 1 में ए टिक है और ऑप्शन 5 में ए टिक है. बाकियों में ए टिक नहीं है, 2 में ए टिक नहीं है. तो अगर वो येस हो गया है और आप 1 और 5 पे आ गए हो तो 2 तो मार्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए तो हाँ हो चुका है. आप तो ऑलरेडी इस ब्रांच के यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हो. आपने लेफ्ट टर्न नहीं लिया, आपने राइट टर्न ले लिया है. आर यू गाइस गेटिंग मी? कर्मण्य, निशी बोलो. हाँ, तो अब आप ये पूछोगे कि क्या बी अलोन सफिशिएंट है. मान लो आंसर आता है हाँ भाई बी अलोन सफिशिएंट है. अगर बी अलोन सफिशिएंट है, ए पहले ही सफिशिएंट हो चुका है, आंसर वुड बी ए टिक बी टिक, मतलब ऑप्शन 5. बट लेट्स से आंसर आता है नहीं, ए अलोन तो सफिशिएंट है बट बी अलोन सफिशिएंट नहीं है. 3 सवाल पूछने, अभी मैं दूसरे सवाल पे ही आया हूं. आप एट अ टाइम किसी एक ही ब्रांच को ट्रेवल कर रहे होगे. एट अ टाइम यू कैन नॉट बी एट दी बोथ ऑफ द ब्रांचेस. तन्वी महेश्वरी. Yes, sir. Okay.
तो लेट्स से आंसर आया नहीं बी सफिशिएंट नहीं, अभी मैं क्या ना एग्जांपल लेके भी करूंगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आंसर आया बी सफिशिएंट नहीं है, मतलब ए तो सफिशिएंट है मगर बी सफिशिएंट नहीं है, ए टिक बी क्रॉस। अगर ऐसा होता है आंसर होगा ऑप्शन 1। तो ये सबसे पहला असम्पशन क्या था भाई, ए यस हो चुका है। मान लो हम इस ब्रांच पे नहीं आए, हम इस ब्रांच पे आ गए, नो वाली ब्रांच पे आ गए जहां पे ए क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे पूछो दूसरा सवाल तो हमेशा यही होना है, इज बी अलोन सफिशिएंट क्वेश्चन मार्क। आंसर आएगा या तो यस या नो। वो एक है ना हमारे जमाने में एक सीरियल आता था ऑफिस, मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, कभी देखा है ऑफिस? वो बहुत पुराना आता था, मुसद्दी लाल करके एक कैरेक्टर होता था, शाहिद कपूर के पिताजी पंकज कपूर। देखा है कि नहीं देखा है? किसी ने देखा है? वो नहीं देखा। तो इतनी सारी चीजें देखते हो आप लोग ओटीटी पे और वेब पे और ये सारी सीरीज देखते हो। मेरे लिए आधा घंटा जीवन का निकाल के यूट्यूब पे जाके ऑफिस टाइप करना, उसमें बहुत पुराना सीरियल है, मुसद्दी लाल करके बहुत फेमस सा कैरेक्टर है पंकज कपूर, उसका आधे घंटे का एक सीरियल देखना, उसमें कैरेक्टर आता है, द कैरेक्टर इज कॉल्ड, नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उस कैरेक्टर का। अभी वो सीरियल्स में फादर बन के आते हैं, उस समय वो बहुत जवान हुआ करते थे, गोलू से कैरेक्टर है, मोटू से। तो जब उनसे वो सरकारी ऑफिसर होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो हमेशा जवाब ऐसे ही देते हैं, देखो भाई अगर तुमने ये नहीं किया तो दो चीजें हो जाएंगी, या तो तुम बचोगे या नहीं बचोगे। बचोगे तो कैसे, क्योंकि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, और नहीं बचोगे तो दो चीजें हो जाएंगी। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। वो सीरियल देखना, डेटा सफिशिएंसी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत सारे एपिसोड हैं, एक एपिसोड देख लो बस उसका, तो ये डेटा सफिशिएंसी में थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। एंड आई एम नॉट जोकिंग, यू विल एक्चुअली लव डेटा सफिशिएंसी इफ यू वॉच दैट कैरेक्टर व्हेन ही इज टेलिंग दैट पर्सन कि तुमको घूस देना क्यों जरूरी है, और वो हर एक के दो केस बनाता जाता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस पे। तो अब अगर ए सफिशिएंट नहीं है तो आप इस ब्रांच में आएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू दिस ब्रांच, यू हैव कम टू दिस ब्रांच। पॉसिबल आंसर 2, 3, 4। आपने सवाल पूछा इज बी अलोन सफिशिएंट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन पॉसिबल आंसर है यस या नो। अब मुझे बताओ अगर बी अलोन सफिशिएंट हो गया तो पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हैं? अगर बी अलोन सफिशिएंट है तो ए नहीं है मगर बी है, 2। The only possible answer is option 2। आप ऑप्शन 2 मार्क कर दोगे और कुछ नहीं करना है आपको। बट अगर बी भी सफिशिएंट नहीं है, ए सफिशिएंट नहीं था, आप ट्रैवल करते हुए इस तरफ आ गए और यहां से आपने वापस एक लेफ्ट ही ले लिया, पॉसिबल आंसर्स हैं गाइस 3, 4। बोलो आर यू विथ मी? मिस बर्तम, पाही, तन्वी, ये जो मुझे दिख रहे हैं, कर्मण्य, निशी, मान्या, आदित्य अय्यर, स्नेहा चौधरी, है ना? इसे समझ में आ रहा है? अब आएगा थर्ड सवाल। मैंने लिखा था ना 3 सवाल पूछने जीवन में नहीं मतलब डीएस में, तो 2 सवाल हम पूछ चुके हैं। तीसरा सवाल, आर ए एंड बी टुगेदर सफिशिएंट, ये सवाल पूछो, फिर आंसर यस या नो में आएगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो यस होगा या नो होगा। अगर आंसर है यस सफिशिएंट है तो आंसर 3, 4 में से कौन सा होगा? 3। ए अलोन सफिशिएंट नहीं है, बी अलोन सफिशिएंट नहीं है, मगर दोनों मिलके आंसर दे सकते हैं 3। ये देखो 3। और अगर मान लो ए और बी भी सफिशिएंट नहीं है, आंसर क्या होगा? 4। Data overall is insufficient. I cannot answer the given question without ambiguity and confusion. आप देखोगे ये जितने भी सिंगल नोड्स हैं मैंने उनको सर्कल कर दिया है। तो गाइस जहां पे आपको सिंगल नोड मिल जाए उसके आगे सवाल पूछना बंद कर देना। अगर यहाँ 1 मिल गया तो तीसरे सवाल पे मत चले जाना पूछने, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं तीसरा सवाल। यू आस्क द तीसरा सवाल ओनली व्हेन पॉसिबल आंसर्स आर 3 or 4, otherwise you don't ask तीसरा सवाल। Now, should you make this flowchart every time you are solving? No, not in examination. But when you are doing home assignments, when you are practicing more from any source, directions पढ़ो, टिक क्रॉस का टेबल बना लो, ये एक्चुअली आपके दिमाग में चल रहा है, ये स्टार्टिंग में बना सकते हो, आगे जाके ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा सफिशिएंसी में 3 सवाल इसी ऑर्डर में पूछना है। स्टेटमेंट 1 sufficient alone, statement 2 alone sufficient, statement 3 alone sufficient.
The moment you get a unique node, stop asking questions. If you get 2 here, don't ask third question because you don't have any options right now. Follow. Now, let me give you a minute's time. Please go through the entire thing that I have done here. ये कॉपी में आप कर लो. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. आने वाले टाइम में I would only want you to make this table. Directions पढ़ो, ये ऐसा टेबल बना लो. Imagine this to be a table, and this flow chart can go inside your brain. Then ask me questions and doubts that you may have. You have to ask 3 questions in this order. When you are asking questions, you are traveling on any one of the branch at one point of time. You cannot be going in both directions. Answers will be acceptable in a yes and a no format. क्या वो sufficient है? हाँ वो sufficient है. क्या वो sufficient नहीं है? वो sufficient नहीं है. अब सबसे बड़ा question, ये कैसे पता आप किसको बोलते हो कि ये sufficient है और किसको बोलते हो कि ये sufficient नहीं है, है ना? How do you say कि ये sufficient है, ये sufficient नहीं है? मैं उस पे आता हूँ. तो देखो भाई, मैं एक बहुत कॉमन एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूं. अगर वो स्टेटमेंट यूज करके मुझे एक यूनिक आंसर मिलता है, आई विल से स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. सो माय क्वेश्चन इज टू मान्या. यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. क्वेश्चन इज, मान लो मान्या, अभी मुझे पूरा लिखने देना. व्हाट इज, और मान्या के बाद आदित्य, what is the value of x? मान लो ये क्वेश्चन है. एस ए का मतलब है स्टेटमेंट ए. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं. एस ए मतलब स्टेटमेंट ए. What is value of x? It says x is greater than 0 and less than 1. Manya, simple question. Is statement A alone sufficient to give me value of x? No. No, why not? Because 0 से 1 के बीच में बहुत सारे आते हैं integers. There are, and I have not told you कि x integer होगा. Right. I have not told you कि वो क्या है वो. So there are infinite number of values of x that x can take. It is not taking a unique value. Yes. Okay, let's say if I tell you what is value of x given that x belongs to set of integer and x is between 0 to 2. Now you know x का value 1 है और कुछ हो ही नहीं सकता. बोलो आदित्य. Correct, sir. तो आंसर would be in that case unique. तो फिर ये डेटा सफिशिएंट हो जाएगा. सफिशिएंसी का मतलब ये होता है वो स्टेटमेंट यूज करके या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करके, guys, I should get a unique answer. If I am getting multiple values, then I am not doing justice. मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूं. ठीक है. तो आदित्य ये क्वेश्चन आपको अनम्यूट करो. नहीं, आदित्य से तो मैंने पूछ लिया. पाही, दिस क्वेश्चन इज टू यू. What is the value of x given that x is an integer, given that x is side of a square? मैं ना लाइफ को थोड़ा सा मिजरेबल बनाता हूँ. And statement A is x is greater than -2 and less than 2. Now, is statement A alone sufficient to give me an answer? Wahi, is statement, what is the value of x given that x is side of a square, given that x is an integer? Statement says x is between -2 and 2. तो क्या आप value of x निकाल सकते हैं? तो we go for a democratic poll. तो आपको मुझे बस यही बताना है स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं. यस और नो. स्नेहा चौधरी, यस और नो. हाँ स्नेहा. Yes. यस. मान्या. Sir, no. नो. निशी. Yes. यस. आदित्य, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उस ऑर्डर में जा रहे हैं. Yes. यस. कर्मण्य. Yes. यस. Sir, I like to switch to yes. I just figured. नहीं, बट मेजॉरिटी कैन बी रॉन्ग. मान्या, अभी कुछ No, नहीं. no, but no, I. महेश्वरी जी बताइए. Go पहले. No, it's yes. Yes.
Maheshwari ji, why do you say yes? Because everybody is saying yes. No, sir. I think only one is the answer. Why do you think that? अच्छा देखते हैं, चलो ये yes बोल रही है, मान्य अभी नो पे रहते हैं. सात्विका बर्तम, please say no so that we can debate. हाँ बोलो, just joking, जो पिक करना है पिक करो. Yes or no? डेटा सफिशिएंट है क्या आंसर करने के लिए क्वेश्चन को? I think it's yes. ओके. भाई तुमसे पूछा था मैंने सबसे पहले, बोलो मुंडी हिला रही हो, हाँ में या ना में? Yes, sir. Yes. Yes sufficient है, but you don't sound confident. आदेश, also show your face to me. Yes. नहीं, चेहरा दिखाओ. हाँ बोलो आदेश. Yes. ठीक है. And प्रीता कोठारी. Yes, sir. हाँ. Yes. Okay, so Preeta, defend why yes. Sir, because it is written that x belongs to an integer. Hmm. So the possible answer is 1. It Why is cannot be zero also anything an else. integer? Preeta Kothari, zero is also an integer. क्या zero integer है प्रीता? पहले तो ये बोलो. No, I think so. नहीं ना? No, it is a whole. हाँ? No, I don't think so. नहीं, zero तो integer नहीं है. Because my first answer when Manya had said no, so I was of the opinion that it should be no. But then when everyone started saying yes, then I observed that x belongs to integer. You I should did not not go with see. everyone. But Preeta, you know, you should not go with everyone. 60 seats हैं general category के लिए IIM इंदौर में, and everyone is 25,000 students, and everyone doesn't get in. तो आपको तो आपका व्यू रखना चाहिए. तो x का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है ना बेटे. Can x be 0? Why x cannot be 0? X integer होता है. Yes. Because अगर x side of square है तो वो side तो 0. हो ही नहीं पाएगा. x side of square हो ही नहीं सकता. मतलब 0. हाँ, क्योंकि square ही नहीं रह पाएगा फिर Square तो. ही नहीं रह पाएगा. Triangle हो जाएगा. तो क्या आपको यूनिक आंसर मिल रहा है? आपको क्या 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 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर एक 0 हो गया तो स्क्वायर क्या बन जाएगा? I mean एक साइड ही नहीं रहेगा. I meant एक साइड ही नहीं रहेगा. कितने साइड होते हैं स्क्वायर में? तुम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, चलो बात करते हैं. कितने साइड होते हैं बेटे? 4. 4. अगर एक साइड 0 हुआ तो बाकी 3 साइड का क्या होगा? प्रीता, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. या इक्वल. तो सारी 0 हो गए. हाँ, तो बचेगा ही नहीं कुछ. तो कुछ बचेगा ही नहीं. आपने जो आंसर दिया था, अगर आप वैसा आंसर दोगे तो उससे मैं नहीं बचूंगा. ट्राइंगल नहीं बनेगा वो. आ गया समझ में? सॉरी. आनी कोई बात नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड. देखो संडे इतना इजी नहीं होता है क्लास अटेंड करने के लिए, और मेरे लिए भी नहीं है क्लास लेने के लिए. बट दिस इज हाउ यू डू. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, अब ध्यान से देखो इसको, और तुम जहां जहां अपना वीडियो ऑन कर सकती हो प्रीता ऑन करो, क्योंकि मुझे तुम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आदेश को अभी देखा, वो येस तो बोल रहा था बट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था. महेश्वरी जी भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी मुझे व्हेन शी सेड यस. बट यू गाइस हैव अंडरस्टूड. ये यूनिक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ गए क्या कि एक यूनिक आंसर आना चाहिए जब आप कोई भी सवाल पूछते हैं. Am I clear on that? Yes. ठीक है. So I will. अगर इस क्वेश्चन में if it was mentioned that maybe x is less than 4, then there will be multiple answers, right? So question from Aditya is, let's say statement A says x is less than 4. Then possible values of x are 1, 2, 3. Are we getting unique answer using statement A? No. Am I getting an answer? I'm getting sets of answers. So is there an ambiguity? Yes. Nishi may say 1 and Sneha may say 3 and Aditya you may say 2. So there is an ambiguity. Ambiguous answer. So statement A alone is not sufficient to answer the question. Let's say Aditya, तुम्हारे क्वेश्चन को बिल्ड कर रहा हूं मैं आदित्य, तो मैं मेरे वर्किंग स्पेस पे जा रहा हूं. आप लोगों को दिख रहा है वर्किंग स्पेस? हाँ. तो आदित्य ने बोला स्टेटमेंट ए सर मान लीजिए ये बोलता है दैट x इज लेस देन 4. सर आउट ऑफ द स्क्रीन है. हाँ, x इज लेस देन 4. सो पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल लेंगे. तो पॉसिबल वैल्यू आता है 1, 2, 3. इंटीजर्स होना है और साइड ऑफ स्क्वायर होना है, ये भी पता है. तो 1, 2, 3. स्टेटमेंट B says that x is multiple of 2. Statement B alone sufficient? Karmanya, statement B alone sufficient to answer what is value of x? B alone? No.
नो, बिकॉज No. मल्टीपल ऑफ 2 तो असंख्य हैं दुनिया में, दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2. व्हेन आई कंबाइन देम आदित्य, कैन आई गेट अ यूनिक आंसर गाइस? Yes. Now I know answer can only be 2. X has to be less than 4 and it has to be multiple of 2. It is a side of square given, it is an integer given. The only possible answer is 2. So इसमें होगा A cross B cross, but A and B tick, जो भी ऑप्शन ऐसा मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 5 में, वो आपका आंसर बन जाएगा. तो मेरे कहने का मतलब यही था, जब A को देख रहे हो तो B को मत देखो, सिर्फ A को जज करो. फिर जब B को जज कर रहे हो तो A को छुपा लो, A को जज करो. अब ऑफ कोर्स आप लोग स्क्रीन पे ऐसे हाथ मत लगा देना, बट दिस इज व्हाट आई मीन. जब दोनों नहीं है तब आप दोनों को मिला के देखेंगे और टच आंसर डिसाइड करेंगे. तो अगर आप देखेंगे ये फ्लो चार्ट चल रहा है सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. राइट हो गाइस? मैंने बहुत समय लिया इसको बिल्ड करने में, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया, रेस्ट देन यू डोंट नीड माय हेल्प. आप सारे क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे प्रोवाइडेड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर थियरी, रीजनिंग आर इन प्लेस. पूछो इस पे कुछ क्वेश्चन है तो. नहीं है? ठीक है. सो सर नाउ अभी हम अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करें, लाइक we ask that the question is x a natural number में भी, and वो दो इक्वेशन दी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. हाँ. So the answer will be fifth one, right? A is sufficient, B is. मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा इसको, बिकॉज व्हाट आदित्य व्हाट यू हैव डन इज, अब तुमने इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया. अब क्वेश्चन चेंज कर दिया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी. अभी उस पर नहीं जाते हैं. होल्ड ऑन, वी विल डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबली योर टाइप विल कम. नहीं तो मैं हूं, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे. द सेकेंड थिंग इज आंसर विल कम इन येस एंड नो, बट मैं इसमें कुछ और भी आपको आगे बताना चाहूंगा. एंड ओनली यूनिक आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. ये तीनों मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया. बट गाइस देयर इज वन स्मॉल थिंग आई वुड वांट टू टेल यू. या दिस मे नॉट बी द राइट टाइम. मैं रुकता हूं उसके लिए, थोड़ा सा रुकते हैं अभी हम लोग. ये शायद मैंने एक साथ स्पॉटलाइट कर दिया. अभी नहीं. रुको, अभी रुकते हैं. वी गो बैक. मैं आपको एक आगे अपॉर्चुनेट टाइम पे बताऊंगा वो. अभी वी गो अहेड. सो क्वेश्चन इज एक्स अ नेगेटिव नंबर. इस तरह से हम वापस आ गए स्ट्रक्चर पे. हमने डायरेक्शंस को समझा, डायरेक्शन से हमने देखा कि उसको टेबल बना लो, मेरा एडवाइस था, और फिर फ्लो चार्ट सबकॉन्शियसली चलना चाहिए. पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, यूटी में काम कर रहे हो, पहली बार करना है, मेक अ फ्लो चार्ट. दैट विल हेल्प यू. टेबल ऑलवेज. इज एक्स अ नेगेटिव नंबर? लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन. एंड देखो आदित्य, शायद तुम्हारा वाला टाइप यहाँ पे आएगा. लेट्स से स्टेटमेंट ए सेज x is greater than -3. We are asking is x a negative number? Now, आप ये हम अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. Is A alone sufficient? नहीं है ना. I can see a lot of mundis, going this way. No, it is not, because x can have multiple values, 0, positive, negative. A alone is not sufficient. If A alone is not sufficient, possible answer है 2, 3, 4. 2, 3, 4 ही आंसर हो सकता है. अब मैं B पे आऊंगा और अब सिर्फ B को देखूंगा. X is less than 1. Is B alone sufficient, guys? No. B alone भी sufficient नहीं है, क्योंकि possible value हो सकता है 0.5, which is positive. It can be -0.5, which is negative. तो कभी तो positive मिलता है, कभी negative मिलता है. मतलब मैं जवाब नहीं दे सकता सिर्फ B को यूज करके. Let me combine them. I come to so possible answer 3, 4. Let's go to combination. X is greater than -3. अच्छा, sorry, ये greater than -3. हाँ, मैंने सही बोला था. It is greater than -3 and less than 1. Is combination giving me an answer? Is X negative? Can I say is X negative? No, I cannot still say. है ना सात्विक? I cannot still say because X can take 0, X can take 0.5, X can take -1. तो कभी तो वो नेगेटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है. Okay? So answer for this is option number 4. Neither statement A nor B together B, they are not sufficient. I cannot give you an answer. अब मैं यहाँ पे आपको एक और छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ. ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इज एक्स अ नेगेटिव नंबर, इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं. यस, एक्स इज अ नेगेटिव नंबर. हाइपोथेटिकली ऐसा मान लो कि दोनों स्टेटमेंट मिला के हमको एक यूनिक वैल्यू मिलता है ये. ठीक है,
या ऐसा मान लो दोनों स्टेटमेंट मिला के हमको यूनिक वैल्यू मिलता है +5। अगर +5 मिलता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? नो। नो इज अ डेफिनेटिव आंसर। मैं बोल रहा हूं ये नहीं आता। मान लो हम ये दोनों स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से, दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों को मिला के मुझे x +5 मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नो। यूनिक आंसर तो आ रहा है नो, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर x5 आ जाए दोनों को मिला के तो ये नो आ रहा है। तो ये मत कराना कि वहां पे 4 मार्क कर दो कि अरे नो आ गया, नेगेटिव आंसर आ गया। नो इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड आंसर, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। आंसर हो जाएगा 3, दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। बोलिए, ये जो मैंने हाइपोथेटिकली समझाया समझ में आ गया क्या? इसमें दोनों एक्सेप्टेबल हो सकते हैं ना, बिकॉज इज एक्स अ नेगेटिव आंसर, नेगेटिव नंबर? यस इट इज अ नेगेटिव। नो इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। ये दोनों डेफिनेटिव आंसर्स हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगा इसमें। तो नो आ जाए तो नो भी एक्सेप्टेबल आंसर हो सकता है। ये आपके ट्री डायग्राम वाला यस और नो नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नो। आदेश, व्हाट डू यू से? अनम्यूट करो, बोलो, मुझे बताओ। आई डोंट थिंक ये समझ में आया है। सर इतना नहीं आया। हम मतलब ये इसमें भी वही 2 केस है, या तो आया या तो नहीं आया, इतना और उतना नहीं। तो अभी करते हैं आदेश, इसको भूल जाओ। इसको क्वेश्चन है इज एक्स अ नेगेटिव नंबर? ओके, लेट्स से दिस सेज x is an integer. नहीं, दिस सेज, मैं अभी बना रहा हूं यार, तुम्हारे साथ साथ बना रहा हूं। लेट्स से x इज अ नेचुरल नंबर, ये जो हमारा आदित्य भी पूछ रहा था। स्टेटमेंट ए सेज x इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, बट ये तो फिर वो हो जाएगा, रुको कुछ और बनाना पड़ेगा आदेश को समझाने के लिए। लेट्स से x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? तो इज x a नेगेटिव नंबर? आई कैन नॉट से। अगर a में ये बोला गया है सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। b पे आते हैं, इज x a नेगेटिव नंबर? लेट्स से इट सेज क्या लें, x को नेगेटिव नो आंसर लेना है ना। लेट्स से इट सेज x is होल नंबर लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, नहीं बट बी अलोन आ जाएगा, बी अलोन नहीं आना चाहिए। क्या बनाएं सवाल को? सो लेट्स से x is a multiple of 5, ये b है, where n is, नहीं अभी भी नहीं बना सकते। Okay. Probably taking a linear equation as statement B and solving for x, like x minus 5 is equal to 0. अच्छा, x minus 5 is नहीं, x minus 5 is equal to 0, तो x is equal to 0 आ जाएगा, तो b alone sufficient, x equal to 5 आ जाएगा, b alone sufficient हो जाएगा। I don't want b to be sufficient। आदेश में तुमको ना इसको कुछ और बनाते हैं, रुको अभी करते हैं इसको समझाने के लिए। a alone sufficient नहीं, is x a negative number? given that नहीं, nothing given that, so इसको मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ये देखिए। Sir, x square is a whole number. ठीक है, x square is or let's say x square is greater than 0। Sir, आप first statement बराबर था, you can make the second statement as x square. And x is an integer, ऐसा बना देते हैं। हाँ। थैंक यू आदेश। ये देखो, अब अगर मैं स्टेटमेंट ए लूंगा तो x का नेगेटिव लोगे, x नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टिल इट विल बी ग्रेटर देन 0। एंड आई कैन नॉट से x नेगेटिव है कि नहीं। भाई 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर दोनों 0 से बड़ा होगा, तो x यहाँ पे +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। एंड लेट्स से x इज, यहाँ पे होल नंबर लेना पड़ेगा आदित्य, राइट? Yes, sir. And let's say statement B says x is, but वही वापस आ जाएंगे प्रॉब्लम, a whole number, but let's continue this, x is a whole number। अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करूंगा
तो x का एक ही वैल्यू आ सकता है which is +5. Now if you ask me question is x negative, इसका एक definitive answer है x is not negative. ये no acceptable है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोग, क्योंकि एक definitive answer आ गया, मे भी नहीं है यहाँ पे. I know ये थोड़ा सा debatable है, but इसको अभी for the argument sake इसको ऐसे ही रहने दो. Let's say b से हमको आंसर नहीं मिलता है, but जब मैं दोनों कंबाइन करता हूँ तो x can only be +5 because x belongs to whole number का सेट. Okay guys, तो अगर नो भी आंसर आए तो इसको एक्सेप्ट करना इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. चलो आगे चलेंगे हम. व्हाट इज टाइम बाय और वॉच? हु इज वेयरिंग वॉच, और या कोई किसी के पास घड़ी है यहाँ पे आसपास? बताओ. It's 12:30. 13 12:30. 30. Yeah. Okay, so I'll take 5 more minutes and then we'll go for that water break. Hold on. So we do a sample problem just to try and understand. This is the question on your screen. You don't have to announce the answer. इसको please करिए. 5 option type DS. मैंने आपको पहले ही options बता दिए. Just type your answer 1, 2, 3, 4, 5 in the chat box. Send it to me personally, not to everyone. Chat box में जाना, मनीष सराफ उसमें नाम दिखेगा, to मनीष सराफ मुझे भेजना. Don't send it to everyone. What is the value of x where x is length of a parallelogram? Statement A is a quadratic equation. Statement B is also a quadratic equation. 1, 2, 3, 4, 5 में इसको solve करना. Send me in the chat box privately. Option 1, 2, 3, 4, 5. आदित्य, एक तो आपने गलत भेजा, वो भी सबको भेजा है. मुझे ये गलत आंसर प्राइवेटली भेजो. Okay, so I got answer from Nishi, Karmanya, and that is the best part. सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं. आदित्य का भी आ गया दूसरा आंसर. चलो आदित्य, सेंड मी. अभी देखते हैं. A alone sufficient, B alone sufficient, A and B together sufficient, none sufficient, A alone and B alone. ऐसे हैं ये 5 ऑप्शंस. याद रखना. आंसर तो आदित्य तुमको मुझे प्राइवेटली वापस भेजना है आंसर. So this is going to be a good debate, guys. I am getting different answers. Neha, come on. चलो तन्वी, आदेश, सात्विका, Pahi, you are there. Neha Chaudhary, send answer privately, please. Manya, thank you. चलो आगे. तन्वी, I got your answer. और कौन बचा? प्रीता, आंसर भेजो. अब वही होता है, आप वीडियो ऑफ रखते हैं ना तो मुझे दिखता नहीं है, फिर मुझे पार्टिसिपेंट्स में ढूंढना पड़ता है. ओके, स्नेहा का आंसर आया. तन्वी, मान्या, निशी, आदित्य, कर्मण्य, ये आंसर्स आ गए हैं मेरे पास. सर सात्विक, आई गॉट योर आंसर. तो मेरे पास है ना आंसर्स 2, 3, 4, 5. नहीं प्रीता, जस्ट सेंड. इतना लंबा ये सब लिख के थोड़ा ना भेजना है. 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा आंसर है उतना सा भेजो बस मुझे. यस यस आदित्य. Sir, I have sent you another message. I think that is the correct answer. You can discard the first one. ठीक है, done. So guys, let's solve this, and I'll invite one of you to solve this for me. Who is going to solve this? What is the value of... Should I? Where? Should I? Who's this? Pritha Kothari. Pritha. Okay, chalo, go ahead. So it will be if we split it, so x square minus 2x minus 3x plus 6. So सबसे पहले we are doing is A alone sufficient. Now since this is a quadratic equation, x would ideally have 2 values. Let me see what are these values.
तो ऑप्शन ए को यू आर सेइंग इसको सॉल्व करो आइदर बाय By स्प्लिटिंग। splitting the middle terms. हाँ ठीक है, करो, बताओ The मुझे। answer will be 3 and 2. X is equals to 3 and 2. minus 3x minus 2x 2x plus 6. 0, x common लो, x X minus 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 3. 2 common लो, x minus 3 equal to 0. So x का possible value है 2 और 3. Is A alone sufficient? No, No. because it's giving me two values. या तो वो side 2 हो सकता है parallelogram का, या वो 3 हो सकता है. Which one I don't know. So possible answers हैं 1 और 5 हटा दो. Possible answers are 2, 3, 4. अब मैं चेक करूंगा is B alone sufficient? Yes, Preeta, go ahead. So it will, should I tell the answer directly हाँ or बोलो no? ना, बोलो. So X will be 3 and minus 5. देखो अगर किसी का और कुछ आ रहा है तो मुझे बताना. ये लड़की ने मुझे यही बताया, -5 और 3. So is B alone sufficient, Preeta? No. Okay. अब एक मिनट ना रुकना, मैं सबके चेहरे देखना चाहता हूँ. No, actually yes, because minus 5 cannot be the side of a parallelogram. So 3. अब एक मिनट रुको. क्या आंसर भेजा था तुमने? I had sent 3. आदित्य, तुमने भी पहले 3 भेजा था, फिर तुमने उसको करेक्ट किया. How Yes, many sir. of you had sent your answer as? समझ में आया? Is B alone sufficient? महेश्वरी जी? Yes, yes. Yes. पाही नहीं आया ना समझ में? पाही उपाध्याय पक्का? आदेश? चलो कोई तो है जिसको मुझे समझाने का मौका मिलेगा. अनम्यूट करो आदेश. Yes, sir. B alone sufficient है guys. What is the value of x given that x is the side of a parallelogram? So B के 2 values आते हैं. Can side of parallelogram be negative? नहीं हो सकता आदेश. तो ये तो anyway नहीं है आंसर. Only value of x possible is 3. So answer is A not B tick. कितने लोगों का ये पहली बार पहले अटेम्प्ट में राइट आया? Who all? Nobody. कर्मण्य एंड सात्विका. सात्विका तुमने हैंड रेस किया है क्या? नहीं, तो वो हाथ नीचे करो ना, मुझे कंफ्यूजन होता है. सो ओनली कर्मण्य गॉट इट राइट इन फर्स्ट गो, एंड ऑफ कोर्स सात्विका एंड आदित्य गॉट इट राइट बिफोर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग. उसने इसको सही किया, तो आई विल गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट. थैंक यू. यू कैन लोअर योर हैंड्स. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्क था, बट ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? निशी बोलो. So I can see that disappointment on face, but let me tell you, ये हम क्लास में कर रहे हैं, so you shouldn't be disappointed. Rather, you should be elated because now you know that यहाँ पे गलती हो सकती है जो मैंने इसको कवर कर लिया. ठीक है? Can I go ahead? अच्छा मान लो hypothetically, हाँ मान लो यहाँ पे वैल्यू आता है x is equal to 5 और 3. तो क्या करते मान्या गर्ग? तो Then आंसर the answer would have been the third option, that is both of third them. option. Because when you combine these two, there is only one value which is common, which is 3. x का एक ही वैल्यू कॉमन होता 3, तब आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन से आंसर आ रहा है. ठीक है भाई? ये कोई एक ऐसा पैराबोला है, ये कोई एक ऐसा पैराबोला है, और उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन पॉइंट है, और एक ही पॉइंट आ रहा है मान लो ये, और नहीं आ रहा है कुछ, या ये ऐसा पैराबोला है. आई डोंट नो, मैं पैराबोला में नहीं जा रहा, बट देयर इज वन कॉमन पॉइंट व्हिच इज सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन. आप आंसर को 3 मार्क करते, बट अभी आंसर 2 है. लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द IIM इंदौर टाइप क्वेश्चन. ये वैसा वाला क्वेश्चन था, गूगली था ये. आप देखेंगे इसमें इंटेलेक्चुअली कुछ नहीं था, अवेयरनेस की बात है बस इसमें, है कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक एंड देन वी विल गो टू आवर एक्सरसाइज. एक और सवाल करते हैं, ध्यान से पढ़ना. Nobody is asking you. अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूं. मैं ना एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई वांट टू मेक. Remember, nobody is asking you value of x in that parallelogram वाला क्वेश्चन. x फाइंड कर लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है, डेटा सफिशिएंट है कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव है. तो जैसे ये क्लैरिटी आ जाए, x ढूंढने मत बैठ जाना. बट यहाँ पे विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू वो क्लैरिटी नहीं आता. बट मेनी क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसा अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं. आइडिया इज नॉट टू फाइंड कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा. आइडिया कुछ और है. 1 minute टाइम गाइस, आंसर प्राइवेटली भेजना प्लीज. In how many days A and B working together can finish a work
if B is not working till end, A can finish same work alone in 10 days. Statement B, B can finish same work alone in 15 days. Send your answers privately. छोटा सा friendly hint. This is also a googly. Do not assume anything. कोई भी आंसर नहीं आया अभी तक. मैंने ज्यादा कॉन्शियस कर दिया आप लोगों को. So I got my first answer. Okay, Satvika. Thank you, Rita. Okay, Karmanya. इसमें भी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं भाई. So again we'll have debate. आदित्य got it. अभी मैं नहीं बता रहा राइट है या रॉन्ग है. Okay, महेश्वरी जी, I got your answer. चलो, स्नेहा, आदेश, निशी, मान्या. Sneha got it. Pahi got it. Adesh. This is more reasoning based. So, अब है ना different answers है. Current discussion. You want more time? Shall we? कौन बचा है? निशी, गर्ग, आदेश और आदेश का भी आ गया. Sir, I would like to correct my answer. You don't know you are correcting yourself or you are making yourself incorrect. Yeah, I would. But you are like changing change your my answer, तो कर लो. ठीक है, देखते हैं. चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं. अब आंसर है ना हर तरह का आया है. 1 भी है किसी का, किसी ने 2 भेजा है, किसी ने 3 भेजा है, किसी ने 4 भेजा है, किसी ने भी 5 नहीं भेजा है. तो ये तो पक्का है 5 आंसर नहीं है. Let's solve it together. In how many days A and B, मैं इसी पे सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये तो पूरा रीजनिंग बेस्ड है. A and B working together can finish a work. Working together can finish a work if B is not working till end. Statement A says, and we'll do this with, मैं आप में से ना किसी एक को पकड़ता हूँ, उसके साथ करते हैं इसको, और रैंडमली पकड़ता हूँ. किसको मैंने मौका नहीं दिया है अभी तक. ऐसा तो कोई. चौधरी जी, we do this with you. चलो स्नेहा, unmute. Yes, sir. बोलो, which option are you defending? सबसे पहले तो ये बताओ. Sir, fourth. इतना धीरे बोल रही हो, मतलब गलत है क्या आंसर? Sir, Fourth. sure नहीं है, fourth. कोई बात नहीं, वो श्योर हो अनश्योर हो, फोर्थ को डिफेंड कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो फोर्थ को डिफेंड कर रहे हैं गाइस. अब जिनका फोर्थ है वो सब देखेंगे, और जिनका फोर्थ नहीं है वो भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है फोर्थ ही आंसर हो. If B is not working, so logic says check statement A. Is statement A alone sufficient? A can finish the same work in 10 days. Is A alone sufficient, Sneha? Sneha, is A alone sufficient? Yes, sir. नहीं, no. नहीं, A alone sufficient नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि B के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. B के बारे में कुछ पता ही नहीं है. I know A can do the same work in 10 days, तो एक दिन में करेगा 1/10, 1/10. But what about B? I don't know. हाँ. Look at statement B. Is B alone sufficient? So A alone sufficient नहीं है. Possible answer होगा 2, 3, 4. ये पॉसिबल आंसर है. जिन्होंने भी 1 भेजा है, क्या वो समझ गए उनका आंसर गलत होगा? बिकॉज ए का आपको वर्किंग पता है, 10 दिन में अलोन वर्किंग पे खत्म कर देगा. बी का क्या? आई डोंट नो, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन. तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि ए और बी जब साथ में काम करेंगे और बी आखिरी तक काम नहीं कर रहा है, ये लोग कितने दिन में काम करेंगे? आर यू गेटिंग मी गाइस? किसने भेजा था बी? आदेश, तुमने भेजा था बी? ए 1. यस तन्वी. बट सर बी तो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसका निकालना ही क्यों है? बी काम ही नहीं कर रहा है, ये कैसे कंक्लूड किया? बताओ, आप समझाओ मुझे. लिखा तो है कि बी इज नॉट वर्किंग टिल एंड, तो बी तो काम ही नहीं करेगा. बट हाउ डू यू नो बी ने स्टार्ट किया कि नहीं? आखिरी तक काम नहीं कर रहा है वो. Both of them started working together. How many days A and B will be working together and finish the work? If B is not working till end, he is leaving it midway.
आई डोंट नो, स्टार्ट करके चला गया, आखिरी के एक दिन पहले चला गया, है ना तन्वी? तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, आई कैन अंडरस्टैंड आपने उसको वैसा इंटरप्रेट किया होगा, तो बैड लक नहीं, तो 1 तो आंसर नहीं है। लुक एट बी स्टेटमेंट, बी अलोन, कैन बी कैन फिनिश सेम वर्क इन 15 days। नेहा, इज दिस सफिशिएंट? सेम लॉजिक, ए का कुछ पता ही नहीं है हमको, अगर हमको ए का कुछ पता ही नहीं है तो बी अलोन सफिशिएंट नहीं है। पॉसिबल आंसर क्या है? 3,4। दोनों को कंबाइन करते हैं, ए और बी को। स्नेहा, फोर्थ को तुम डिफेंड कर रही हो। A can finish same work in 10 days, B can finish same work in 15 days। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो A के 1 day का contribution plus B के 1 day का contribution, this is total job done in 1 day। बोलो स्नेहा। Yes, sir. इसको सॉल्व कर लो और ये पता कर लो कितने दिन में काम खत्म होगा। हाँ। तो आंसर तो 3 होना चाहिए, मगर आंसर 3 नहीं है। क्यों नहीं है आंसर 3? आंसर 4 क्यों है? एनीवन? क्योंकि बी कितने दिन काम कर रहा है अभी पता ही नहीं है। हाँ, यू डोंट नो बी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। हो सकता है इसने पूरा x डेज तक काम किया और इसने उसमें से कुछ y डेज ही काम किया, तो B is not working till end, got it? But that doesn't mean B is working till second last day only, or first day only, or midway only. Who told you that? How can you assume that? So make no assumptions. I don't know कि B कब छोड़ के गया। अगर मुझे ये नहीं पता B कब छोड़ के गया तो मैं ये नहीं बता सकता A और B अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। बोलो कर्मण्य। आंसर कैन नॉट बी ऑप्शन 3, कंबाइन करके भी कुछ नहीं मिलेगा। आंसर है ऑप्शन 4, A alone cannot, B alone cannot, A and B together cannot। आदित्य, क्या आंसर किया था तुमने? सर 4। 4 is correct। Got it guys? With this we will take एक छोटा सा 5 minutes का water break। 12:46 हो रहे हैं मेरे वॉच में। 12:51 we meet again। Thank you। Right guys, hope you are back। Let's start। चलो चालू करते हैं। So now we hit the road types where we really do these problems and practice। And again, let me tell you, you should do these problems with a sense of learning। नहीं बन रहा है किसी और का right हो रहा है और आपका गलत हो रहा है, you should tell yourself that good, वो गलत यहाँ पे हो रहा है and you are getting an opportunity to learn। Do not judge yourself if others are getting it right। We are doing this for first time। Be reasonable with yourself। Don't be so hard on yourself। ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके राइट हो, तो समझते चलना, बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल नाउ हैव समथिंग और दी अदर टू ऐड। कुछ असम्पशंस लेंगे, कुछ ऑब्वियस होगा, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे, कुछ उसके अगेंस्ट होंगे, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में देख के करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ इज you should go down to your book now and open this particular page। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लिखा है मेरी स्लाइड में। I want you to open this page and this page is called, कौन सा पेज नंबर है? 22 है ये। On your book I want you to go to this page and I want you to draw that table and flow chart for the directions given। तो आप देखोगे ना उसमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं ऊपर। डायरेक्शन क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन 1 to 20 और मार्क 1 2 3 4 दिख रहा है क्या आप लोगों को? 4 डायरेक्शंस ही हैं उसमें। कैन यू सी दैट? इसके लिए टेबल बनाओ। दिस टेबल विल बी डिफरेंट। हमने अभी 5 ऑप्शन डीएस किया था, ये 4 ऑप्शन डीएस है। इसका टेबल बनाओ और इसका फ्लो चार्ट बनाओ। क्वेश्चंस नहीं करना है। व्हेन यू आर डन जस्ट लेट मी नो।
आप मुझे चैट में या थम्स अप या करके बता सकते हो when you're done. Make a graph for this, but before that make a table, option 1, 2, 3, 4, and उसका एक ग्राफ बनाना प्लीज. Try and make the table first. Okay. You have done the graph as well, Karmanya? हाँ, मिनिमम टेबल तो बना ही लो, और टेबल बन गया तो ग्राफ बना. मुझे लगता है सबसे ट्रिकी इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है. 3 और 4 तो यूजुअल है, अब बना लोगे फटाफट टेबल में. You can understand what do they mean by mark your answer as option 1 and mark your answer as option 2. वो क्या है, वो क्रैक करना है. चलो, तो अगर फ्लो चार्ट नहीं भी बनाया है तो टेबल तो बना लिया होगा ना सबने. हाँ, सात्विका वर्तक बोलो. डन, टेबल डन. I'm done with the table, yeah. Okay, so in that case I'll start with Nishi. You tell me what should I write. I'll write it down here and then we will see. The first option, it should be A tick and B cross. For the second option, it is A tick and B tick. Yeah. For the third option, it is A cross, B cross, A and B tick. And for the fourth option, it is A cross, B cross, A and B cross. Okay, thank you. Now let me pick some जो agree नहीं करता है. You don't agree I करना. do not. प्रीता कोठारी also, she doesn't agree. आदित्य doesn't agree. तो किसी एक को लेते हैं जिसका disagree. बाकी लोग agree. आदेश कहाँ गया? आदेश वीडियो ऑन करो. You agree? स्नेहा, you agree? Okay. मान्या, you agree? मान्या also, you don't agree. So एक एक करके लेते हैं. सात्विका, you go first. I think the first option, it should be A tick, B cross. We could also consider A cross and B tick as well. That should be an option too. मेरे वर्किंग स्पेस को रखना पिन करके, अगर वो नहीं है तो वैसे मैंने स्पॉटलाइट बना रखा है. सात्विका, sorry, go ahead. So you think this is correct, but something is missing. What is missing? Yeah. I think in the first option, we should also consider A cross, B tick. What do you say, Aditya? Is she correct? Yeah, A cross B tick or A tick, A cross B tick. Yeah, A tick. बोलो कर्मण्य बोलो. Same. So very importantly, Aditya said or A cross B tick. Very good, Satvika. ये ध्यान रखना भाई. अगर A से मिलता है B से नहीं, या फिर A से नहीं मिलता है B से मिलता है, दोनों केस में ऑप्शन 1 को ही टिक करना है as per direction. Any other disagreement, Prita Kothari? Any other disagreement, Prita Kothari? Pahi, what do you say? Prita, bolo. Unmute and No, please. sir, same thing. No other disagreement.
और कौन है डिसएग्रीमेंट वाला? कोई नहीं है. I think there's one small correction to be made. ये जो सेकेंड वाला है ना, if ये क्या था, can be answered by using either statement alone. This is correct. No problems here. Sir, then it should be added that A plus B and cross. A plus B and cross in the second one. In the second one, it should be A plus B. What do you mean by A plus B? I mean A tech, B tech, and then A and B cross because it is written either. So फिर उसको correct. But rather than writing it in that fashion, I'll write it like this. A alone can and B alone can. बस ऐसे ही लिखूंगा मैं. ये सही है, ये लिखा हुआ गलत नहीं है सेकंड वाला. मैं छोटा सा करेक्शन करूंगा. सो मेरा फाइनल ये हो गया. दिस इज माय फाइनल थिंग. अगर ये बन जाता है तो अब आपको फ्लो चार्ट बनाना है. प्रीता, यू हैव समथिंग टू ऐड? No, sir. ठीक है, चलो भाई फ्लो चार्ट बनाओ एंड देन वील स्टार्ट विद कर्मण्य एंड देन अदर्स कैन कंट्रीब्यूट इन. बहुत देर से उसने हाथ रेस कर रखा है. आदेश, मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? पाही? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आदेश, तुम जनरली क्लास खारगर ब्रांच से अटेंड करते हो? No, sir. Online. वीडियो ऑन करो और आप क्लास के बाद आज रुकेंगे और हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी देर. ठीक है आदेश? आई वुड वांट टू स्पीक टू यू इंडिविजुअली. पाही, ये सब समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? Yes, sir. है ना? ठीक है. So please do stop me without any hesitation and without worrying what others will say. मुझे रोकना अगर आपको समझ में नहीं आए. इसका फ्लो चार्ट बनाना है. आदित्य, बन गया फ्लो चार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो लेट कर्मण्य स्टार्ट एंड देन यू I'll call you for any alteration if required. चलो भाई, guide me. Is A alone? Then two options, yes or no. Is A alone sufficient? Question mark. दो ऑप्शंस बना देते हैं. Yes it is, no it is not. अब है मेन. अगर है तो क्या? Yes में 1,2. वेरी गुड. And no में अगर 1, रुको 3, रुको, धीरे चलो. सो अगर है तो 1,2. देखो यहाँ पे A टिक एंड A टिक, ये दोनों में A क्रॉस है. A अलोन सफिशिएंट तो है ही नहीं. सो 1,2 नहीं है तो ये बताया तो मैं मान लूंगा समझ में आया. बोलो भाई, नहीं है तो मैं फ्रीज हो गया. नहीं, लोग दिख रहे हैं मुझे और आदेश का पंखा भी दिख रहा है चलता हुआ. तो कौन कहा? बोलो भाई. कर्मण्य, नहीं है तो? Sir, audible हो? यस आई एम ऑडिबल. हाँ, यू आई डोंट नो इफ यू आर, तुम फ्रीज हो गए थे बेटे. यस यू आर ऑडिबल, बोलो. No 1, 3, 4. वेरी गुड. ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें. 1,3,4 1 दोनों जगह आएगा, ये ध्यान रखना. नाउ वी गो फॉर सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन. इज बी अलोन सफिशिएंट? पहला वाला राइट साइड में पूछते हैं, फिर आंसर आएंगे यस या नो. यस और Yes में नो. लेट्स से two और no यस में आया one. तो क्या? तो क्या? Yes में 2, no में 1. वेरी गुड, वेरी गुड. और आगे सवाल पूछना बंद अगर आप 2 या 1 पे अराइव हो गए तो. अदरवाइज मान लो नो वाले में आए इज बी अलोन. ये सब समझ में आ रहा है? गिव मी सम एक्नॉलेजमेंट. तन्वी है ही नहीं इसमें. Yes, sir. कहाँ है? हाँ है. ओके ठीक है. यस एंड नो. यस Yes में 1. अगर यस है विच No में- मीन्स ए तो नहीं मगर बी अलोन, तो आंसर हो जाएगा 1. नो में 3,4. 3,4. तो कुछ नहीं पूछना अगर 1 आ गया. 3,4 में पूछो आर ए एंड बी टुगेदर सफिशिएंट? सफिशिएंट है क्या? ये अभी बनाने के लिए बनाना है आपको. अगर ये आप सही बना पा रहे हो ना तो मतलब आपने उसको
मेंटली सही कैप्चर कर लिया है, बोलो यस है तो क्या और नो है तो क्या। 3 yes के लिए और 4 no के लिए। This is the flow chart. And on. So if you are able to follow this table, जो ये missing link था, निशी समझ में आ गया? And then ये अगर आप ये flow समझ पा रहे हैं, then let me tell you guys, आप question को conceptually नहीं समझा तो बात अलग है, कि आपको समझ में ही नहीं आता है रियल नंबर क्या होता है, तब बात अलग है, अदरवाइज ये ऐसा ही बनेगा, है ना आदित्य, ये ऐसा ही बन रहा है? Yes, sir. Okay, great. So if that is the case, guys, we go back to my screen and हम लोग क्या करते हैं वार्म अप के लिए, हाँ ये क्वेश्चंस नहीं करते हैं आपकी बुक से, ये मैंने हाथ से कुछ स्क्रिबल किया है स्क्रीन पे, ये वाला करते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, इसको मैंने चैलेंज क्वेश्चन नाम दिया है, जितने लोग इसको राइट करेंगे, वर्चुअली 5 स्टार तो नहीं दे सकता, एक वर्चुअल पॉइंट दे दूंगा मैं आप लोग, 0 for wrong answer and 1 for correct answer. I give you 1 minute's time, send your answers privately. A typical IIM इंदौर का क्वेश्चन है ये, ऐसा समझ के चलो इसको। सर इसमें ऑप्शन वो ये 1 2 3 4 है कि 1 2 3 4 5 व्हाट वी हैव टू फॉलो? हाँ तो इसमें, हाँ गुड क्वेश्चन, अभी से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे गाइस 1 2 3 4, अभी जितना भी करेंगे एंड ऑफ द क्लास तक 1 2 3 4, not no, is A sufficient? No. If not sufficient, is B sufficient? No. If 4 are sufficient? No. ओके गॉट आंसर फ्रॉम आदित्य, और जो पहला आंसर दिया है उसी पे पॉइंट मिलेगा, नो देन यू कैन नॉट चेंज। चलिए, okay, let me give you 30 seconds more. Okay, I got answer from Satvika, Nishi, आदित्य, सात्विका, निशी, कर्मण्य। वाओ, सो इसमें भी ना बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 सभी आ रहे हैं। पृथा, जब तक आप सब लोग यूनानिमसली एक गलत या एक सही आंसर नहीं दे देंगे तब तक क्लास खत्म नहीं करते आज, या तो सब गलत दे दो एक साथ, एक ही गलत, या सभी लोग सही दे दो। ओके पृथा, गॉट इट, चलो आगे, तन्वी, मान्या, आदेश, स्नेहा। I think everybody have answered this. Now we'll go for this. देखो, so like I said 1 2 3 4 चारों ही options हैं, of course सबके वो right नहीं है, but I'll tell you there are only 2 people in this class, और ये actually challenge problem था, इसका मतलब जो इसको जो right किया है जिन लोगों ने, and I got from Pahi also now, और बाकी सबका ये गलत है। So इसको डिस्कस करते हैं, I'll pick one of you to help me solve this, and let me first talk to जिसने आंसर सबसे पहले दिया, कौन है? आदित्य। आदित्य के साथ ये आंसर को डिस्कस करना चालू करते हैं। आदित्य, मैं जितना पूछूंगा उतना ही जवाब देना, अभी अनम्यूट करो। Yes. So I'll read it first and then we'll discuss. In the figure provided, L, M, H are straight lines with L parallel to M. Is B equal to 90 degree? इसका आंसर या तो yes होगा या no होगा। Is it equal? So we go to कौन सा ऑप्शन डिफेंड कर रहे हो आदित्य? Fourth one. Fourth, which says A alone is not sufficient, B alone is not sufficient, together they are not sufficient, useless data है, कुछ नहीं हो सकता। चलो स्टेटमेंट ए पे आते हैं आदित्य। स्टेटमेंट ए अलोन लेते हैं, A is 55, ठीक है आदित्य? Yes sir. And all three are straight line। अगर ये 55 है आदित्य, can I find B? बताओ। Yes sir. कितना आएगा B? 125. Sorry, 125 की 1 था, 125, 125. So can I get a unique answer to the question being asked? Yes sir. अय्यर साहब, ये तो सफिशिएंट हो गया है कि नहीं? Yes sir.
जिन भी लोगों ने 4 मार्क किया था, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो ये समझ गए A alone is sufficient. Yes, sir. तो आंसर 4 तो नहीं है गाइस, A alone is sufficient. अगर A alone sufficient है, पॉसिबल आंसर है 1,2. ये 4 ऑप्शन डीएस कर रहे हैं ना, 1 है आंसर या 2 है, A alone is sufficient. ए स्टेटमेंट ए से मुझे ये पता चलता है B is not equal to 90 डिग्री. क्या ये डेफिनेटिव है, विदाउट कंफ्यूजन है? यस, हाँ. अब 1,2. लेट्स कम डाउन टू कर्मण्य. विच ऑप्शन आर यू डिफेंडिंग? ऑप्शन ए. One. ऑप्शन 1. Option 1. चलो बेटे, लेट्स कम डाउन टू ऑप्शन बी नाउ. स्टेटमेंट बी. इज बी अलोन सफिशिएंट? देखते हैं. D is greater than 90 degree. This is greater than 90 degree. Are L and M parallel? Yes. Can I say B is equal to D? Yes. Oh, sorry. B is equal to D. If I can say that, can I say B is greater than 90 degree? Yes. Do I get a definite answer for this? Is B equal to 90 degree? No. I don't get a definite answer. सवाल क्या है? Is B equal to 90 degree? Statement B alone use करके क्या पता चलता है? B is greater than 90 degree. Greater than 90. So I am getting a definite answer. No, B is not equal to 90. But अरे वो पूछ रहा है B 90 के बराबर है क्या? मुझे यहाँ पता चल गया B 90 से बड़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना B 90 के बराबर नहीं है. I am getting a definite answer which is no. So A alone is sufficient. B alone is sufficient. यूनिक आंसर कहाँ पर है? यूनिक आंसर है ना? नो. कोई डाउट है क्या नो में? B is greater than 90. B greater than 90 है कि नहीं? Around 90 plus and 180 minus, right? क्या? It could be anywhere around 90 plus and 180 minus. Agreed. But will it be equal to 90 degree? But will it be equal to 90 degree? सवाल क्या था ये बताओ मुझे. क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो. Read it loudly. Is B equal to 90 degree? Right. And what you are telling me is B is between 180 to 90. Unmute करो ना. B is greater than 90 but will be less than 180 degree. क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. तो क्या वो 90 के बराबर है? नहीं, 90 के बराबर नहीं है. मुझे डेफिनेटिव आंसर मिल रहा है, कोई डाउट ही नहीं है. ये थोड़ी ना पूछा है B का वैल्यू क्या है. B का वैल्यू नहीं पूछा है. B 90 के बराबर है क्या? नहीं, B 90 के बराबर नहीं है. B 90 से बड़ा है. अगर B 90 से बड़ा है तो पक्का 90 के बराबर नहीं है. Focus on the question that is asked. Is B equal to 90 degree? आंसर आएगा yes या no. It says B is greater than 90 degree. For sure B is not equal to 90 degree because it is greater than 90. Greater than equal to नहीं है वो. तो एम्बिग्यूटी नहीं है. बोलिए, समझ में आया? Got it. Answer is option 2. Satvika and Nishi Garg have got this right. इसीलिए ये चैलेंज प्रॉब्लम था, क्योंकि वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे दिमाग में कई बार हम we get fixated to the idea and DS tends to challenge that, where we assume certain things. Question is very simple. Is B equal to 90 degree? The moment I know B is greater than 90 degree, for sure it is not 90. फिर कुछ भी वैल्यू होने दो, वैल्यू तो पूछा भी नहीं है. So this information is giving me a unique answer to the dilemma, and the dilemma was, is B equal to 90 degree? No, B is not equal to 90 degree because it is greater than 90 degree. Yes, पूछो. So when do we say a statement is sufficient? You say a statement is sufficient when it gives you a unique answer, where there is no ambiguity, there is no confusion, there are no multiple cases possible. हाँ, ठीक है. Sir, actually, I think I misread the question. If it was, can it be proved that B is equal to 90 degrees, then option 4 would have been correct. Am I right? I don't know. So I will not work on possibilities, ifs and buts. If people read question wrongly, तो तब तो फिर यही तो पकड़ना चाहते हैं IIM वाले कि कितनी जल्दी में है आप, कितने सारे आपके खुद के assumptions हैं जिनको आप चैलेंज करोगे तो आप हिल जाते हो. Can you think
without any baggage, without any biases. तो अब वो can you prove, या I don't know, मतलब आदित्य, ये तो बहुत सारे shades हैं इसमें. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब आप उसको पढ़ के कुछ और समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. यस, पूछो. So here the unique answer is no, not the actual value. They have never asked you any Unique value. answer, हाँ हाँ, तो unique answer no या guess हुआ basically. हाँ, जैसे स्टेटमेंट ए में यूनिक आंसर आया क्या आपका, बी का वैल्यू क्या आया ये बताओ मुझे स्टेटमेंट ए में. 125, तो वो तो Right. यूनिक वैल्यू ही आ गई. नहीं नहीं, यूनिक वैल्यू आ गया, बट वैल्यू पूछा है क्या, वैल्यू नहीं पूछा. मुझे तो बताओ पूछा क्या है, रीड करो इसको, क्या पूछा है. Is b equal to 90 degree? So no. अब अगर ये पूछा इज योर नेम कर्मण्य, एम आई आस्किंग कि आपका Yes. नाम क्या है. आई एम नॉट आस्किंग योर नेम, आई एम आस्किंग इज योर नेम कर्मण्य. इसका आंसर आएगा यस या नो. एंड लेट्स से योर नेम इज कर्मण्य, आंसर इज yes. If your name is not Karmanya and if it is something else, answer is no. Similarly, they are asking is b equal to 90 degree. What is the value of b? Nobody is asking you. And you're not supposed to find it. यहाँ पे b 125 आया तो I know b is not equal to 90 degree. Unique answer is no. यहाँ पे आया b greater than 90 degree. For sure, it is not greater than. अगर ये greater than equal to होता तब चीजें गड़बड़ हो जाती. आदित्य, तो तुम मुझसे एक से केस पूछ रहे थे. तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब तो b 90 भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी हो सकता है. ऐसा तो नहीं था, और कुछ प्रूफ तो करना ही नहीं था, वैल्यू तो निकालनी नहीं थी. चलो, सो वी स्टॉप दिस हियर. ओपन योर बुक गाइस. मैं ऐसे चैलेंज प्रॉब्लम और थ्रो करता जाऊंगा जब मुझे लगेगा ये सब समझ में आ गया. ओके, सो गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट सात्विका एंड निशी. क्लास के एंड में मैं आपके टोटल टैली लूंगा कि आपका पॉइंट कितना है. तो अभी आते हैं आपकी बुक में. आई वांट यू गाइस टू सॉल्व फर्स्ट 2 क्वेश्चंस. दोनों सॉल्व करना है, मुझे कुछ भी नहीं भेजना है. सॉल्व करके हैंड रेस कर देना. क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 पेज नंबर 25 पे है ये. आंसर की को मैं करेक्ट करता चलूंगा क्योंकि आंसर की में बहुत गड़बड़ी है, तो वो मैं बता दूंगा आपको, आप उसकी चिंता मत करिए. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 क्लास वर्क 22 में से करना है, पेज 25. We will discuss both of them together. I give you full 90 seconds, 1.5 minutes. करिए. क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मतलब जो छोटा छोटा पैराग्राफ का पार्ट है वो ना, नॉट पूरा बड़ा वाला ना. अच्छा, कुछ और भी है पार्ट. आई डोंट नो, मैं शायद गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ. चलो मैं दिखाता हूँ एक बार. रॉन्ग पेज. I show this to you for the first and last time. So what I am asking you to solve is, अपनी बुक में देखो, ये दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये वाले मेरा पेन का. I want you to solve question 1, question 2, पेज नंबर 25 पे. ये समझ गए? यस. No sending of answers, just letting me know that you have done both. इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो बहुत इन्फ्लेमेबल क्वेश्चन है, ज्वलनशील. तो करेंगे हम लोग उस पर डिबेट, बट करो अभी तो. So I don't see Adesh. Just give me a thumbs up or a hand raise or write in the chat box that you have done both, when you have done both.
Okay. Come on, guys. First two only. एक सर्कल वाला क्वेश्चन है और एक अरुण पूनम वाला क्वेश्चन है. ओके, आदित्य, पृथा, होल्ड ऑन. सात्विका, निशी, वेटिंग फॉर तन्वी, कर्मण्य, मान्या, स्नेहा, पाही. अरे बहुत टाइम लगा दिया. Okay, first two problems only. So I give you guys 10 more seconds and then we go for discussion. You are left Sneha, Pahi, Karmanya. तीन लोग बचे हैं. 10 more seconds and then we go for discussion. Finalize your answers, please. For option DS. चलिए, let's go ahead and we go into the discussion mode. We will take the first problem first. Question number 1 लेते हैं. You can lower your hands now. I will pick one of you and then you are going to solve this. And पहले हम आंसर डिक्लेयर करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. अगर सबका वही आंसर है तो सॉल्व नहीं करेंगे शायद. Only if you want me to. Otherwise, I'll solve it. अगर किसी एक का भी गलत है and if you want me to solve, I'll solve it. So question number 1, Manya, what's your answer? Option A. Option A, which is A या 1, mark 1. So option A is your answer. Option A, by the way, guys, is correct. So कोई ऐसा है क्लास में जिसका ये incorrect है और वो मेरे साथ इसको डिस्कस करना चाहता है? Anyone who has got any other answer? ये मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि we gain time. But अगर आपका गलत है बहुत अच्छा होगा कि हम उसको डिस्कस करें. Okay, 1. And that's all, I guess. And Pritha. Okay. कर्मण्य आंसर बोलो क्या है? कौन सा ऑप्शन आंसर है? हाँ? 2 ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 मतलब उसमें वहां पे लिखा है ऑप्शन बी. You mean to say? You mean to say option 3? A statement A is correct and statement B is sufficient. Statement A is A tick and sufficient. B tick. A tick A and B. tick and B tick. ठीक है. And Pritha Kothari? Sir, B option. Option. चलो, let's solve this, guys. मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ and I go to my working space. और अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा. मैंने शायद वो टेबल बना लिया है. And now I go ahead and I check on. So we do जैसा हम वो फ्लो चार्ट में करते हैं. Statement A. Q is a point on circle and is point P on circle with center O? This is the question. Is the point P on circle with center O? एक बात तो पक्का है that there is a circle with center O. आगे चलते हैं. Statement A alone है क्या? Q is a point on circle and distance from P to Q is equal to distance from O to Q. तो सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं. Let's say Q. ये वाला डिस्टेंस, सो ये तो पक्का रेडियस है क्योंकि ये सेंटर दिया हुआ है. ये सर्कल पे एक पॉइंट है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज क्या P सर्कल पे है? So P is a point on circle. Distance from P to Q is equal to O to Q. So whatever this distance be, P कहीं और होगा. Let's say P यहाँ पे. मैं इसको P डैश नाम दे देता हूँ. ये वाला डिस्टेंस. या मान लो P यहाँ पे है. ये वाला डिस्टेंस. मान लो ये सब बराबर है. ये भी P हो सकता है ना. ये तो रेडियस है. अब ये P से ये सर्कल में भी हो सकता है. ये सर्कल के बाहर भी हो सकता है. Is it alone sufficient, Karmanya? Pritha? What they are saying is OQ बराबर PQ है. स्टेटमेंट A ये बोलता है. बट उसके तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं. सर्कल पे भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है. A alone sufficient है क्या? No. डिस्टेंस R का A alone sufficient नहीं. हाँ
नहीं है नहीं है। A alone अगर ए sufficient नहीं अलोन है। सफिशिएंट नहीं है, आपने अगर वो ग्राफ चार्ट देखा हो, अगर ए अलोन सफिशिएंट नहीं है तो मेरे पास पॉसिबल आंसर है 1,3,4। तो ऑप्शन 2 तो आंसर नहीं है। गोइंग टू पी, पी पे आ जाओ। पी अलोन, Q is on circle and PQO is an equilateral triangle. This is my circle. O सेंटर है, दिया हुआ है। Q सर्कल पे ये भी दिया हुआ है, और ये R है, एंड POQ is an equilateral triangle. इसका मतलब ये R डिस्टेंस पे ही P होना चाहिए और ये भी R डिस्टेंस होना चाहिए। तो पक्का अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा और P को सर्कल पे होना ही पड़ेगा। B alone is sufficient. तो आंसर है A क्रॉस B टिक। Which is which option? Option A या 1? बोलिए प्रीता कोठारी। Sir, but according to statement A, it is OQ is equals to PQ. Correct. So So onto the let's say second OQ is statement. R. Yeah. P can be outside the circle with an R distance. P can be inside the circle with an R distance. P can be on the circle with an R distance. So the question is, question was rather, But is it is written that P is on the circle, so it cannot be outside. ये कहाँ लिखा है बेटा? P is on the So circle. question is the point P on the circle with center O. This is a question mark. This is not a given statement or data. This is what you have to find out. यही तो query है, पृथा, Okay, yeah, understood. है ना? तो वो assumptions गड़बड़ होते हैं. Come down to question 2. Who's going to declare answer for this? Let me pick one. Aditya here. Sir, I think it's option D. D, which is 4, right? Yes, sir. A भी नहीं, B भी नहीं, और दोनों together भी नहीं. ठीक है? Any other answer? Yes, Nishi बोलो. Sir, I think it's option A again. That is first statement. First statement. बोलो कर्मण्य. Even I think the same. Option A. तन्वी महेश्वरी. Sir, even I think option A. अच्छा, बहुत सारे A वाले हैं. कोई है जो बोलता है आंसर है ऑप्शन B? Is there anybody who says answer is option B? Option B मतलब हो गया statement with mark 3. A alone cannot, B alone cannot, A and B together. मैंने पहले ही बोला था ये ना बहुत ज्वलनशील वाला है, तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं. सो कोई एक डिफेंड करो. कर्मण्य, यू डिफेंड व्हाटएवर ऑप्शन यू आर डिफेंडिंग. क्या डिफेंड कर रहे हो? 1 2 3 4 में से बताओ मुझे. 1. चलो 1. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस गाइस. मैं पढ़ता हूं इसको. इज अरुण फादर ऑफ पूनम? ठीक है, इज अरुण फादर ऑफ पूनम. स्टेटमेंट ए पे आते हैं. पूनम इज डॉटर ऑफ अरुण. पूनम इज डॉटर ऑफ अरुण. बताओ, इज ए अलोन सफिशिएंट? Yes. Yes, sir. ओके. अगर पूनम अरुण की डॉटर है तो पक्का अरुण पूनम का फादर है, राइट? सोचो, कोई डिसएग्रीमेंट है क्या इसमें? कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं क्या आप? यस मान्या. So अरुण लड़की का नाम हो सकता है. That can be the only assumption. Yes, that is one thing that disputes statement A कि पता नहीं अरुण फादर है या अरुण मदर है. हमने ये assume कर लिया. अब now you will say कि भाई हमारे यहाँ तो हमने कभी अरुण किसी लड़की का नाम सुना नहीं है. बट गाइज, जैसा मैं आपको बोल रहा था, ये आप नाम से और बाहरी नॉलेज से नहीं लेके आएंगे, इवन इफ इट इज वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट. सो जैसे in many cultures, like possibly up north in Punjab, Manpreet can be name of girl, and Manpreet could also be name of a boy, and you cannot make by name. And similarly, मैं ये नहीं बोलता अरुण के लिए ऐसा बोले, बट मैं ये बोल रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को अगर मेरिट पे देखेंगे, जस्ट बाय नेम आप जेंडर को अज्यूम ना करें. स्टेटमेंट ए अलोन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज अरुण कुड बी मदर और अरुण कुड बी फादर. लेट्स कम डाउन टू स्टेटमेंट बी अलोन. अरुण इज ब्रदर ऑफ आरव. सो व्हाट? पूनम से क्या रिलेशनशिप है ये नहीं पता. स्टेटमेंट बी अलोन इज नॉट सफिशिएंट.
है ना? अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो कुछ पता चलता है क्या? अरुण इज ब्रदर ऑफ आरव. डू आई नो अबाउट जेंडर ऑफ अरुण? Yes. If I combine the two, and if Arun is brother of somebody, for sure Arun is a male. If I combine. And if Arun is male and Poonam is daughter of Arun, Arun becomes father of Poonam. And answer is yes, which is a definitive answer. So correct answer है option B, 3. अब आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि नहीं अरुण, तो आप बताइए कोई जिसका अरुण किसी लड़की का नाम हो तो. So don't challenge me to that level because मैं कोई अरुण शायद नहीं ढूंढ पाऊंगा. But what I'm trying to tell you by this question is the learning is don't apply something that you know but may not be always true. ठीक है, आगे बढ़ते ऐसे तो sir, I can assume that Poonam is an orphan and they have just adopted her or something. तो ऐसे तो फिर it could also be fourth. अगर अडॉप्ट भी किया है तो फादर डॉटर का रिलेशनशिप तो चेंज नहीं होगा ना. Okay. अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे हम इस क्वेश्चन की सैंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दें. बट आपने जो भी केस बोला उसमें रिलेशनशिप वोंट चेंज. बट assuming the gender is a dangerous thing to do, especially in DS questions. बस उसका ध्यान रखिए. That is what I want to tell you. So we come down to question number 3 and 4. 3 or 4 करिए. Another 1 minute. Possibly last set for today. I can tell you ये दोनों क्वेश्चन सैंपल पेपर से हैं IIMs के. तो very very interesting important questions 3 and 4. Focus on the question in each case. You should get a unique answer. Let me know when done. Question 3, question 4. Okay, Satvika Nishi. Okay. Pritha, Pahi, Adesh, Neha. Hurry up, please.
मुझे लगता है फोर्थ वाला थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, थर्ड वाला इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, समय नहीं लगना चाहिए उसमें। तन्वी, कर्मण्य, मान्य, हरि आप। चलो शैली गाइस करें हम लोग इसको, डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग देखिएगा एंड देन कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो आई हेल्प यू। मैं ना शेयर करता हूँ ये प्रॉब्लम, बिकॉज ये थोड़ा सा वर्डिंग्स बेस्ड है, तो ये देखना पड़ेगा हम लोग। ओके, यू कैन लोअर योर हैंड एंड आई विल पिक वन ऑफ यू टू सॉल्व दिस। सो लेट मी पिक सबसे पहले, आई थिंक आई विल पिक जिसने आंसर नहीं दिया इसमें, Pahi, I'll pick you. We'll do question 3 together. Why don't you read question 3 for me? Have you done question 3? Are you done with this? Maybe 4. 4. Okay, chalo, Option. let's see. So you mean to say this is the right answer? As per me. ठीक है, चलो. Please read it loudly. If the ratio of boys to girls attending school in 2000 was 1:3, what was the ratio of boys to girls attending school in 2001? Okay, let's come down to statement A alone. So if boys were X, girls were 3X in 2000, year 2000. ये मुझे पता है, right, Pahi? Yes. Let's go ahead. Statement A, 100 more boys were attending school in 2001 than in 2000. So which means boys हो जाएंगे X plus 100. But what about girls? Nothing is mentioned and I cannot assume वो increase हुआ, decrease हुआ या वो same था. So I cannot find ratio for 2001. Statement A alone is not sufficient. बोलो किसी को इस पे डाउट है तो, कुछ है तो मुझसे बात करो यहीं पे. A alone नहीं है. We go to B alone. 150 more girls were attending school in 2001 than in 2000. So this is like 3x plus 150. But B alone में भी वही challenge है. It's not talking about boys. So I don't have any information. A alone नहीं है, B alone नहीं है. अभी आगे कौन ले जाएगा इस question को? Thank you, Pai. So let me ask somebody else. Yes, Aditya here. Yes, sir. Can a combination give me a unique answer? Ratio of boys to girls in 2000. बोलो, निशी बोलो, कर्मण्य, कोई भी बोलो. Yes, sir. Yes, sir, I think. So number of boys upon number of girls. कर्मण्य बोलो. Can I get a unique answer if I combine? A alone नहीं है, B alone नहीं है. A and B together. Number of boys to number of girls. क्या यूनिक आंसर मिल रहा है आप लोगों को इसमें? कुछ भी यूनिक नहीं मिलेगा. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x एंड x इज नॉट नोन. कैसे मिलेगा यूनिक? आदित्य, निशी, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड, बिकॉज़ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन x गाइस. x plus 100 upon 3x plus 150. Sir, I did not do it this way. I did it. I like took a value in my head about x. Why did you take a value in your head? Who told you to take a value in your head? assumption ही तो नहीं करना है ना निशी, यही तो मैं बोल रहा हूँ. आपने एक वैल्यू लिया निशी और सात्विका के हेड में कुछ और आ गया है और मेरे हेड में कुछ और आ गया है. But the ratio at the end of the day same ही आएगा ना if we take it. नहीं, अरे कैसे? चलो अभी कर लेते हैं. तो लेट्स टेक x as 1000. हाँ. मानिए अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, क्या है क्या कैलकुलेटर आपके पास? No, sir. मैंने x को 1000 लिया. हाँ, ये वाला एक रेशो आया, मगर सात्विका के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. उसने कहा मैं 500 लूंगी, मैं मुझे इतना खर्चा नहीं करना है, तो उसने 500 लेके किया. 500 into 3 is 1500, तो ये हो जाएगा 1650. So what you guys are telling me, ये दोनों रेशो सेम है. ये वाला रेशो is same as this ratio. आदित्य, निशी, ये बोल रहे हो आप लोग? मुझे समझ में आया क्या गड़बड़ी की आदित्य? Yes, sir. बोलो निशी. Yes, sir. You cannot assume a value. जैसे रोड पे स्पीड किल्स, डीएस में assumption kills.
आंसर इज ऑप्शन 4. ए अलोन भी नहीं, बी अलोन भी नहीं, ए एंड बी साथ में भी नहीं. किसी का राइट हुआ है ये? किसी का भी राइट नहीं हुआ है? कुछ लोग हाँ मेरा सही का है. बर्तन है. सर कर्मण्य, मैंने भी बोला है। नेहा चौधरी, महेश्वरी जी, गुड 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 गुड. सो दिस इज व्हाट विल बी टेस्टेड. ये मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ. ये हाँ, पूछो क्या पूछना है, पूछो आदित्य. आपने हैंड रेज किया है. I'm sorry, sir. ओके, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. बस खत्म करते हैं हम ये. एक क्वेश्चन और करते हैं एंड देन पॉसिबली हो गया. अच्छा हाँ, ये इसके कीज में बहुत डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो ये जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो आप अपना की भी ठीक करते जाना. सॉरी, वेयर इज इट? क्वेश्चन नंबर 4 होल्ड करो प्लीज. पेज नंबर क्या है? 25 ना? पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 24 तो मिल नहीं रहा है मुझे. होल्ड ऑन. Sorry. Yes, I'm there. Question number 4. तो मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है. कोई भी एक लीड लो एंड उसको डिस्कस करते हैं जैसा अभी भाई ने किया. लेट्स डू दैट. ओके निशी बोलो. Sir, I think it's option A. That is first. The ऑप्शन ए को first डिफेंड कर रही है ये. Yeah. मुझे एक बार देखने दो किस किस का ऑप्शन ए है. Who all have got ऑप्शन ए? नहीं. तो तन्वी महेश्वरी क्या आंसर है? What is your answer for this, Tanvi? So I didn't get the answer. ठीक है. आदित्य? So even I agree, it's option A. ए. सात्विका? ए. Option A. स्नेहा चौधरी? ऑप्शन ए. कर्मण्य? 4. मान्या? C option. 3. ए. 3. 3. Yeah. ओके. पाही? क्विकली पाही बताओ. नहीं हुआ. I did not do it. पृथा? Sir, D. ठीक है. लेट्स सॉल्व दिस. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. तो किसी एक को चालू करते हैं, जैसे निशी से चालू किया था हमने. इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, बस इतना सा ही पता है, ये ध्यान रखना. ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मुझे ये पता है. पॉजिटिव नंबर्स हैं, रादर इंटीजर्स भी नहीं, पॉजिटिव नंबर्स हैं. Is B greater than A? This is the question. Is B greater than A? Let me say if I can get a definitive yes or a definitive no using A and B options. Statements. We come down to statement A. Statement A पे आते हैं guys. Statement A says A square of the number is greater than B. Can I say B will be greater than A? जिनका भी आंसर 3 आ रहा है. अगर A square greater than B दिया है तो क्या पक्का B greater than A या A greater than B बोला जा सकता है? No. नो. बताओ मुझे कुछ केसेस. Sir, example, if A is 2 while B is 3, so it would be. रुक जाओ एक एक करके चलते हैं. A is 2 and B is 3. इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है yes B is greater than A. स्क्वायर बनाओ. A का स्क्वायर विल बी 4 which will be greater than 3. है कि नहीं? तो डेफिनेटिव आंसर मिलता है yes B is greater than A. कोई और केस पॉसिबल है क्या? हाँ ले लो ना, यहीं पे ले लो. हाँ बोलो. Point 1 and 2. पॉइंट ए को लिया पॉइंट 1 and B को लिया 2. नहीं, वो तो सेम केस हो गया. ए को लिया 3 एंड बी को लिया 2. अब देखो ए को लिया 3 और बी को लिया 2, तो स्क्वायर ऑफ ए विल बी 9 विच विल बी ग्रेटर देन 2. स्टेटमेंट ए इन दोनों केस में ट्रू हो रहा है, मगर कभी तो ए बी से छोटा है, कभी ए बी से बड़ा है. तो स्टेटमेंट ए अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन यूनिकली. एम आई क्लियर? कर्मण्य, मान्या, तन्वी, स्नेहा बोलो. हमने कभी ए को छोटा लिया बी से और वो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन को ट्रू कर दिया. कभी ए को बड़ा लिया बी से और ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन को ट्रू किया. तो कभी ए बड़ा होता है, कभी ए छोटा होता है. ये वाला कंडीशन दोनों केस में ट्रू था. सो आई कैन नॉट से कि इज बी ग्रेटर देन ए विथ फुल कॉन्फिडेंस कि हमेशा ऐसा होगा या नहीं होगा. ठीक है निशी? सात्विका, यू ट्राई एंड डिफेंड ऑप्शन बी. तो ये तो नहीं है, ए नॉट है. Option B.
Option B says a square of a number is greater than b square. A square is greater than b square. Can I say b will be greater than a? Definitively. Yes or no? बोल सकता हूँ क्या? Yes. This will always give me a firm reply. If square of a number is greater than square of another number, तो पक्का ये वाला पार्ट मैं हमेशा निकाल सकता हूँ. Yes या no जो भी आएगा. You take any values. तो टेस्ट कर लेते हैं. मुझे बता दो आप लोग रैंडम कुछ वैल्यू अभी टेस्ट कर लेते हैं अगर ये नहीं समझ में आया तो. अगर a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर है तो पक्का b ग्रेटर देन a पे डेफिनेटली कुछ बोला जा सकता है. या तो डेफिनेट yes या डेफिनेट no बोला जा सकता है. तो b अलोन सफिशिएंट है. कर्मणी समझ में आ गया आपको? हाँ. सो आंसर होगा ऑप्शन 1 a नॉट b टिक. यू टेक एनी वैल्यू ऑफ ab. सो फॉर एग्जांपल इसको 4 लो, इसको 2 लो, इसको 0.4 लो, इसको 0.2 लो. नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर वहां पे आ रहा है तो एनीवे ले लो अगर लेना है तो. इसको -0.4 लो, इसको -0.2 लो. Every time a square will be greater than b square and I can tell you about b greater than a. है या नहीं है ये बता सकता हूं मैं हर बार. और सेम आंसर आएगा हर बार. It will not be greater than a. Okay guys? Sir, just something to add. Sir, I'm thinking अगर इस question में if a and b are integers, then the answer would have been 4, right? Neither statement can be combined. Even combined, it's impossible to prove. चलो अभी करते हैं. Last thing that we'll do today. So what he's saying is it's also given that a and b are this and both of them belongs to set of integers. अभी देखो आदित्य, a तो नहीं हो सकता. You think statement b alone is also not sufficient? I think, sir, because if we take the value of a to maybe 5. 5, okay. 5 and -7. So a and -7. or -3. Sorry, -3. Value -3. हाँ -7 नहीं ले सकते तो समझ में आ गया ना. -3. So a square will be greater than b square and b greater than a. आंसर होगा no. Okay. Take any other value आदित्य. इसको रिवर्स करते हैं 3 and wait. 3 और -5 तो ले ही नहीं सकते ना. a square should be greater than b square. Give me any other value. तो तुम ये ट्राई कर लेना. कोई भी वैल्यू लोगे, ये कंडीशन भी डालोगे तो भी b हमेशा सफिशिएंट होगा टू आंसर द क्वेश्चन. Oh, yes, sir. Okay. So answer, got it. ले लेना तुम कुछ डेसिमल ले लेना, कुछ भी ले लेना. It will always be true. So we have done 4 problems. We did lot of problems where हमने theory building में use किया. This is one last problem जिसका screenshot आपको लेना है. अभी कर नहीं रहे हैं, घबराओ मत. This is only your challenge problem. ये आप screenshot ले लो. हम जब भी next time मिलेंगे, we will start our class with this problem. 4 option DS. You have to solve this. आप screenshot ले लीजिए. 50 people were invited for the function. How many attended? Statement A says not more than 20 failed to respond to invitation. Statement B says not less than 30 attended. ये आपको करके लाना है. जब हम मिलेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे. या कर लिया है आप लोगों ने इसको? Can I remove the screen now? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है. चलो. So that's all from my side. Thank you for joining in today. Next Sunday your class will be taken by Uday sir और वो मैथ्स का ही कोई पोर्शन आगे लेके जाएंगे. Okay guys? Thank you. Bye bye. Sir, Yes. so the LR class